கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த அருமையான நாளை தந்த கர்த்தருக்கு நம்ம நன்றி செலுத்த வேண்டும். इस अच्छे दिन दिया हुआ परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए. கடந்த 2 வாரம் முழுதும் ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாத்தார். पिछले 2 हफ्ता पूरा परमेश्वर ने हमें संभाला. இந்த மாசத்தின் 3வது வாரத்துக்குள்ளாக வரும்படியா கர்த்தர் நமக்கு கிருபைகளை கொடுத்திருக்கிறார். इस हफ्ते में हमें तीसरा हफ्ते में लेकर आने के लिए प्रभु मदद किया है. ஸ்தோத்திரம். இந்த வீடியோ மூலமா உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறோம். इस वीडियो के दरमियान आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தி அவர் உங்களை மகிமைப்படுத்துவாராக. निश्चय परमेश्वर आपको ऊंचा करके परमेश्वर आपको महिमा करेगा. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे. நம்ம இந்த ஆராதனை துவக்கமாக इस आराधना की शुरुआत ஒரு பாடலை நம்ம படித்து एक गीतों को गाकर ஸ்தோத்திரம் நாம் தேவனை நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம். परमेश्वर की ओर हम देखेंगे. ஆண்டவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம். परमेश्वर ने किया हुआ भलाई बहुत कुछ है. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन कहता है ஸ்திரியானவள் एक स्त्री தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் अपनी गर्भ की बच्चे को न तरस खाते தன் हुए பாலகனை மறந்தாலும் अपने पुत्र को भूले तो भी அவள் மறந்தாலும் वो भूले तो भी நான் மறப்பேன் சொல்லி இருக்கிறார். मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा நம்மளை कहता है. மறப்பாத தேவன் அவர். वो कभी नहीं भूलने वाला அவர் परमेश्वर. எபினேசர் அவர். वो हमारा एबिनेसर है. அவர் நமக்கு துணையாளர் அவர். वो हमारी सहायता परमेश्वर அவர் நம்மளை है. மறக்காம அன்பை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் அவர். वो कभी भी हमें न छिपाते हुए हमें प्रकट करने वाला அவர் परमेश्वर. எளியோனை கண்ணோக்கி பார்க்கிறவர். वो कंगालों को तरस देखता है. பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர். नाम लेकर पुकारता है. ஆண்டவர் நம்மில் வைத்ததான கிருபைகளுக்காக उसने हम पर रखा हुआ अनुग्रह के நாம் लिए நிர்மலமாகாமல் காத்து கொண்டு வருகிறார். हमें नाश न होते हुए संभाल के आ இருள் रहा है. நம்மை சூழ்ந்திட்ட போதிலும் अंधकार जब हम पर छाते हुए வழியெல்லாம் தெரியாமல் போகையில जब हमारा मार्ग नहीं दिख रहा கர்த்தர் था நம்மளை மறக்கவில்லை. तो परमेश्वर हमें नहीं भूला. நாம் அழுத போது மறக்கவில்லை. जब हम रो रहे थे तब भी नहीं அவர் भूला. நம்மளை மறக்காதபடிக்கு वो हमें नहीं भूलते हुए நம்மளை அவர் அணைத்து கொண்டார். वो हमें गले लगाया. நம்மளை சோத்திரம் அவர் பாதுகாத்து கொண்டார். वो हमें रक्षा किया. நாடு நோக்கி நம்ம பார்க்கலாமா? वो परमेश्वर की ओर हम देखें. அவர் பெரியவர். वो महान है. எளியவனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா? दीनता लोगों को अपनी आंखों से देखा. பேர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா? नाम लेकर पुकारा. நம் தேவனை நோக்கி நம்ம हम பார்க்கலாம். परमेश्वर की ओर देखते हैं. எளியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா? பேர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா? பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா? உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும், உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும் என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா? என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா? மறப்பேனோ உமது அன்பை, மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளர் எல்லாம் சொல்லலாமா? ஆராதனை எபினேசரே, ஆராதனை என் துணையாளரே, ஆராதனை. நீரின் மேல் வைத்த உம் கிருபையினால் நீர் மூலமாகாமல் காத்தீரையா? நீர் மூலமாகாமல் காத்தீரையா? கடுங்கோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே, கடுங்கோபத்தால் என்னை அடித்தாலுமே கனிவான என்னை தேற்றீரையா? கனிவான என்னை தேற்றீரையா? மறப்பேனோ
மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேனோ பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனோ பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே, இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே, வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே, வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே, மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா, மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா, மறப்பேனோ என்று சொல்லி அழைத்தீரையா, மறப்பேனோ என்று சொல்லி அழைத்தீரையா, மறப்பேனோ உமது அன்பை, மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே எல்லாரும் சத்தம் உயர்த்தி ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே, இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே. இருள் சூழ்ந்து இருக்கிறதா? ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே, வழி ஒன்றும் அறியாமல் தவிக்கையிலே, மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா, மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா, மறப்பேனோ என்று சொல்லி அழைத்தீரையா, மறப்பேனோ என்று சொல்லி அழைத்தீரையா. எபினேசரே மறப்பேனோ உமது அன்பை, மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. அநேக நேரங்களில் कई समय நீர் எங்களை மறந்து விட்டீரோ, आप हमें भूल गए क्या, நீர் எங்களை கைவிட்டு விட்டீரோ, आपने हमारे हाथ छोड़े क्या, அழுதோம் ஐயா. ऐसा हम रोए थे पिता, ஆனால் நீ சொன்னீங்க, लेकिन आपने कहा நான் உங்களை மறப்பேனோ मैं क्या तुम्हें भूलूंगा, என்று அணைத்தீர் ஐயா. ऐसे हम पर गले लगाया। உடைய அன்பு எவ்வளவு விலையேற பெற்றதையா. आपका प्रेम कितना बहुमूल्य है प्रभु। உலகம் எங்களை மறக்கும் பொழுது, जब इस दुनिया हमें भूल जाती है, உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள்
மறக்கும் பொழுது, जब हमारे रिश्ते नाते दोस्त सब हमें भूलते समय, நீர் எங்களை மறக்காத தேவனாய் இருக்கிறபடியா आप हमें नहीं भूलने वाला परमेश्वर। எபினேசரே, एबेनेजर, உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ஐயா, हम तेरी आराधना करते हैं, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, हम तेरी स्तुति करते हैं, துணையாளரே, तू मेरी सहायक, உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஐயா, हम आपको ऊंचा करते நீர் हैं, பெரியவர் ஆண்டவரே, आप महान हो। உம்முடைய பாதத்துல மண்டிட்டு நாங்கள் செபிக்கிறோம், आपके कदमों में हम पटक के हम परमेश्वर विनती करते உம்முடைய हैं, பாதத்துல விழுந்து கடக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா। आपके कदमों में गिर पड़कर हम प्रार्थना இந்த करते हैं। மூன்றாவது வாரத்துல நாங்கள் வந்து இருக்கிறோம், इस तीसरे हफ्ते में हम लोग आए हैं प्रभु। எத்தனையோ உபத்திரவங்கள் ஆண்டவரே, कितने सारे तकलीफें, எத்தனை பாடுகள் ஐயா, कितने सारे दर्द, எத்தனை நெருக்கங்கள் ஆண்டவரே, कितने सारे समस्या, கைவிடப்பட்ட நிலைமைகள் கடந்து வந்தது உண்டு। हाथ छोड़े हुए समय आया था। இந்த வறுமை நாட்களில, इस अकाल के समय में, இந்த வேலை இல்லாத சோத்திர ஆண்டவரே நாட்களில इस बिना काम के रहते हुए எங்களுடைய समय குடும்பம் पर எப்படி நடத்தப்படும் என்று சொல்லி हमारा परिवार कैसा चलेगा எத்தனை बोलकर முறையை யோசித்ததுண்டே, कई बार हमने सोचा था, எத்தனை முறையை கலங்கினதுண்டே, कई बार रोए थे, ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை கலங்க விடாதபடிக்கு लेकिन परमेश्वर हमें न रोते நம்முடைய हुए கண்ணீருக்கு பதில் கொடுத்து अपने आंसू का उत्तर இந்த देकर வாரத்தில் கொண்டு வந்து இருக்கிறாரே, इस हफ्ते में उसने हमें लेकर आया है। எபினேசரா இருந்து நடத்தி கொண்டு வந்து இருக்கிறீரே, एबेनेजर बनकर हमें अभी तक चला कर உமக்கு आ रहा நன்றி है। என்று நம்ம சொல்லுவோம்। हम आपको धन्यवाद देते कहेंगे, எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஐயா। हम अपने आप को झुकाते இந்த प्रभु। ஆராதனைய எங்கள் தேவன் நீங்க முழு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம்। इस आराधना को आप ही परमेश्वर स्वीकार लीजिए। எசப்பா, நீர் எவ்வளவு நல்லவர், பெரியவர், உயர்ந்தவர் ஆண்டவரே। आप कितना महान हो, ऊंचा हो प्रभु जी। இந்த வேளையில इस समय में, அப்பா, இந்த ஞாயிறு ஆராதனையில इस विश्राम दिन की இனி அதிகமா आराधना में எங்களோடு பேசும்படியாக செபிக்கிறோம்। आप हमसे अधिक बातें कीजिए। உடைந்த உள்ளத்தோடு இருக்கிற பிள்ளையுடைய இருதயத்தை ஆண்டவரே காயங்களை கட்டும்படியாக செபிக்கிறேன்। जिसका हृदय टूटा है, घाव आप बांध के दीजिए। பலவீனத்தோடு கூட, कमजोर के साथ, கண்ணீரோடு கூட, आंसू के साथ, துக்கத்தோடு கூட दुख के साथ, யாரெல்லாம் இந்த ஆராதனையில பங்கு கொண்டு இருக்கிறாங்களோ जो कई इस आराधना में भाग लेंगे, அவங்க துக்கங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக ஆண்டவரே மாற பண்ணும்படியாக செபிக்கிறோம்। उनका सब दुख परमेश्वर आनंद में बदल दीजिए। அவருடைய எல்லா விதமான சோதர துக்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்ட தனியாக பலனை கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறையா। उनके दुख के बदले में दुगना आशीर्वाद उन्हें दीजिए। உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் தகப்பனே। हम आपको ऊंचा करते हैं। ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஆளுகை இருக்கட்டும், और एक भागों में आपकी राज्य रहे, உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும் ஐயா। आपका अनुग्रह रहे। ஆண்டவரே, எங்களோடு அதிகமாக பேசும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம்। आप हमसे अधिक बातें कीजिए, ஜனங்களோடு பேசுங்க लोगों से बातें कीजिए। ஆண்டவரே, ஒரு வார்த்தை கூட வீணாக என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே। एक शब्द भी व्यर्थ नहीं जाएगा। வானமும் பூமி ஒளிந்து போனாலும் आकाश और पृथ्वी टल என் जाएगा, வார்த்தையில ஒளிந்து போக நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்கப்பா। मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் ஒன்று ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஐயா, அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் போகாதபடிக்கு मुंह से निकलने वाला शब्द कोई भी व्यर्थ न जाते हो। ஆவியானவர் அதற்கேற்றதான காரியங்களை, வல்லமைகளை, நீர் ஆண்டவரே கிரியைகளை செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம்। पवित्र आत्मा उस सब कार्य करके உம்முடைய दीजिए। எல்லா பகுதியிலும் கரம் கொண்டு இருக்கட்டும்। लगातार सारे भागों में आपका हाथ எங்களை रहे। தாழ்த்துகிறோம்। अपने आप को हम झुकाते। இந்த ஆராதனையை உம்முடைய கரத்துல வைத்து நாங்கள் इस செபிக்கிறோம்। आराधना को परमेश्वर आप संभाल लीजिए। ஆவியானவர் முழு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க। पवित्र आत्मा आप परमेश्वर कार्य कीजिए, எங்களோடு பேசுங்க। हमसे बातें कीजिए। இயேசு மூலம் ஜெபங்களும் ஜீவனுள்ள எங்க நல்ல பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென்। आमीन। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। நம்ம இப்போது ஒரு சில பாடலை படித்து நம்ம தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம்। हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा நீ करें। எங்களோடு நீங்க இணைந்து இந்த பாடலை படிக்கும்படியா உங்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்। अब हमारे साथ मिलकर इस गाने के साथ जुड़ जाइए। நாம் பாட்டினால தேவனை துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது। हम गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए करके वचन कहता है। ஆண்டவர் நம்ம துதிக்கும் பொழுது जब परमेश्वर की हम स्तुति நம்முடைய करेंगे வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வாராக। तो हमारे बीच में वो बड़ा काम ஒரு करेंगे। தமிழ் பாடலையும் एक तमिल गीत को ஒரு இந்தி பாடலை படித்து और एक हिंदी गीत को गाकर நாம் தேவ நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம்। हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। முதலாவதாக पहला, ஆர்ப்பரிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியுவரை ஆர்ப்பரிப்போம், எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார துதியோடு காணலுக்கு நுழைவோம். இந்த பாடலை படித்து நம்ம தேவ நோக்கி நம்ம பார்க்கலாம்.
வரை ஆர்ப்பரிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம். அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார துணியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம். எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார துணியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம். எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, யோசுவாவின் காலமல்லோ. எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஆர்ப்பரிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம், 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 அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். துதிக்கும் நமக்கோ தோல்வி இல்லை, வெற்றி நிச்சயமே. துதிக்கும் நமக்கோ தோல்வி இல்லை, வெற்றி நிச்சயமே. பலங்கொண்டு திடமனதாய் இருப்போமே, பாரதத்தை சுத்தி சுத்தி சுழன்றடிப்போமே. பலங்கொண்டு திடமனதாய் இருப்போமே, பாரதத்தை சுத்தி சுத்தி சுதந்திரிப்போமே. இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஆமென். எழுப்புதலின் காலங்கள் அது. இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஆர்ப்பரிப்போம், 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 அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம், 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 அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல தடைகள் விலகிடுமே. கர்த்தர் நாமம் சொல்ல சொல்ல தடைகள் விலகிடுமே. மாறாவின் தண்ணீர்கள் மதுரமாகுமே, யோர்தானின் தடைகள் எல்லாம் விலகி போகுமே. மாறாவின் தண்ணீர் எல்லாம் மதுரமாகுமே, யோர்தானின் தடைகள் எல்லாம் விலகி போகுமே. இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஆமென். எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஆர்ப்பரிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம், 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 அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நமக்கு யுத்தமல்ல. மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நமக்கு யுத்தமல்ல. வல்லவரின் ஆயுதத்தை ஏந்திடுவோமே, சாத்தானின் ராஜ்யத்தை அழித்திடுவோமே. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வல்லவரின் ஆயுதத்தை ஏந்திடுவோமே, சாத்தானின் ராஜ்யத்தை அழித்திடுவோமே. இது எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஆண்டவருக்கு எழும்புங்க. எழுப்புதலின் நேரமல்லோ, யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஆர்ப்பரிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம், அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம், 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 அலங்கம் இடியும் வரை ஆர்ப்பரிப்போம். எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார துணியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம். எக்காலம் ஊதி எரிகோவை பிடிப்போம், ஆரவார துணியோடு கானானுக்குள் நுழைவோம். எழுப்புதலின் நேரமல்லோ. ஆமென். யோசுவாவின் காலமல்லோ, எழுப்புதலின் நேரம்
காலமல்லோ இது யோசுவாவின் காலமல்லோ. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हम हिंदी गीत गाने जा रहे हैं। ये गाना हम सब जानते हैं। ये गाना ये कहता है कि सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। इस सुबह के समय हम परमेश्वर को हम स्तुति करने के लिए आए हैं, उसकी बलि चढ़ाने के लिए हम आए हैं। तो हम सब मिलकर ताली बजाकर खुशियों के साथ इस गीत को हमारे साथ गाइए। वो एबेनेज़र है, हमारा एलशड़ा है, एल रोई है, यहोवा ईरे है। ये सब याद करते हुए हम परमेश्वर को खुशी के साथ ताली बजाते हुए हमारे साथ साथ एक गीत गाइए। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला, एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला, अब तक संभाला है। एबेनेज़र एबेनेज़र अब तक संभाला है। एबेनेज़र एबेनेज़र सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एलशड़ा एलशड़ा सर्वशक्तिमान, एलशड़ा एलशड़ा सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, एलशड़ा एलशड़ा सर्वशक्तिमान, एलशड़ा एलशड़ा सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एलोई एलोई मुझ पर तेरी नजर, एलोई एलोई मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर। एलोई एलोई मुझ पर तेरी नजर, एलोई एलोई सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे,
हालेलुया। हालेलुया। अभी हम भजन संगीता पढ़ने जा रहे हैं। भजन संगीता 59, भजन संगीता 59 मैं एक पढ़ेगी, मेरे पीछे आप पढ़ते जाइए। प्रार्थना। परमेश्वर ये वचन पढ़ने के लिए हमें मन की आंखें खोल दीजिए। आमीन। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर। அக்கிரமக்காரருக்கு என்னை தப்புவித்து இரத்த பிரியரான மனுஷருக்கு என்னை நீங்களாக்கி ரட்சியும்। क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरी कोई दोष या पाप नहीं, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जागरूक और यह देख। என்னிடத்தில் அக்கிரமம் இல்லாதிருந்தும் ஓடி திரிந்து யுத்தத்தில் ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள்। எனக்கு துணை செய்ய விழித்து என்னை நோக்கி பாரும்। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग, किसी विश्वासघाती हत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांस को लौटकर कुत्ते के समान उड़ाते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। அவர்கள் சாயங்காலத்தில் திரும்பி வந்து நாய்களைப் போல ஊளையிட்டு ஊரை சுற்றி திரிகிறார்கள்। देख वे डकारते हैं और उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को टट्टा में उड़ाएगा। ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் அவர்களை பார்த்து நகைப்பீர், புறஜாதிகள் யாவரையும் இகழுவீர்। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। என் தேவன் தம்முடைய கிருபையினால் என்னை சந்திப்பார்। தேவன் என் சத்துருக்களுக்குள் வரும் நீதி சரிவிடுதலை நான் காணும்படி செய்வார்। उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। அவர்கள் உதடுகளின் பேச்சு அவர்கள் வாயின் பாவமாயிருக்கிறது। அவர்களிட்ட சாபமும் சொல்லிய பொய்யும் ஆகிய இவைகள் நிமித்தம் தங்கள் பெருமையில் அகப்படுவார்களாக। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान उड़ाते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। அவர்கள் சாயங்காலத்தில் திரும்பி வந்து நாய்களைப் போல ஊளையிட்டு ஊரை சுற்றி திரிகிறார்கள்। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात पर घुराते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। நானோ உம்முடைய வல்லமையை பாடி காலையில உம்முடைய கிருபை மகிழ்ச்சியோடு புகழுவேன்। எனக்கு நெருக்கமுண்டான நாளிலே நீர் எனக்கு தஞ்சமும் உயர்ந்த அடைக்கலமுமானீ। आखिरी वचन हम मिलके पढ़े। हे मेरे बल, मेरा तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हमें पढ़ने वाला भजन संगीता समाप्त हुआ। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इतना समय हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति किए, परमेश्वर का वचन पढ़े। लेकिन अभी जो वचन हमने पढ़ा था, जो भजन हमने पढ़ा था, उस भजन को हम लोग एक 5 मिनट ध्यान कर देखेंगे। तो आज जो भजन हमने पढ़ा था वो भजन है सैम्स चैप्टर 59। हम सब अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। हम सब इस अध्याय को खोलकर इस अध्याय से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, या दाऊद का ये भजन जो है दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। तो दाऊद के द्वारा हमें क्या सीखने मिलता है वो हम लोग ध्यान करने की कोशिश करेंगे, और उसे अपने जीवन के साथ कैसे हमें कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या लाभ हमें मिलता है, तो उन कार्यों को हम थोड़ा सा ध्यान कर देखेंगे। ठीक है, तो ये भजन जो है जो दाऊद के द्वारा लिखा गया हुआ एक भजन, इस भजन के ऊपर ही आप लोग देखेंगे तो इसमें लिखा गया है सुरक्षा के लिए किया गया हुआ एक प्रार्थना।
तो दाऊद का भजन, अब जितने सारे भजन संगीता है, दाऊद की भजन को आप लोग विशेष रीति से ध्यान करके देखेंगे तो उसमें दो प्रकार की भजन हो जाएगी। एक जो दाऊद खुशी के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करता है या परमेश्वर का भजन गाता है, परमेश्वर की आराधना करता है। दूसरा एक भाग अगर भजन का आप लोग देखेंगे तो दाऊद जब संकट के समय था या डर के समय या वेदना के समय या कुछ समस्या के बीच में जब दाऊद था, उस समय में दाऊद भजन गाता है। लेकिन आप भजन को आप लोग अधिक से देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दाऊद वेदना के समय अधिक से अधिक भजन लिखता है, संकट के समय अधिक से अधिक जो भजन लिखता है। सुरक्षा के लिए एक भजन ऐसा हम बोलेंगे तो सैम्स चैप्टर 91 हम सबको पता है, हम लोग दिन भर दिन उसे पढ़ते हैं, हर दिन उसे पढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकलने से पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि वो एक बार पढ़कर बाहर जाए। बड़े लोग हमें यही सिखाए हैं, बड़े लोग जो हमें सिखाएं कि इसे हम लोग रोज़ पढ़ना है, हमारे लिए एक आशीष है, क्योंकि हम लोग सुरक्षा के लिए। इस तरह से ये भजन में आप लोग देखेंगे तो सुरक्षा के लिए बहुत सारी भजन लिखी गई है। तो इस पर्टिकुलरली ये 91 जो भजन है, इससे हमें क्या सीखने मिलता है? दाऊद क्यों ये भजन लिख रहा है? सुरक्षा के लिए दाऊद किस कारण से परमेश्वर के पास सुरक्षा के लिए मांग रहा है? हमारी जीवन को भी आप जरा कोशिश करके करेक्ट करके देखिए। हम भी अधिक से अधिक हमारे जीवन में क्या है, खुशी होती है, सुख में हम लोग रहते हैं, लेकिन उससे भी अधिक से अधिक हम लोग संकट के मार्गों से या वेदनाओं के बीच में से या परीक्षाओं के बीच में से हम लोग अधिक से अधिक जाते हैं, या उसमें हम लोग उस मार्ग के बीच में से हमें चलाया जाता है। तो उस समय में ही अधिक से अधिक भजन या परमेश्वर का जो क्लोजनेस है, परमेश्वर के समीप आना, वो जो समय है, उस समय में ही सबसे अधिक हम लोग परमेश्वर के समीप आ पाते हैं। खुशी के समय हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि ये खुशी परमेश्वर के द्वारा आई है। लेकिन उससे ज़्यादा जब संकट के बीच में हम लोग हैं तो वो कनेक्शन जो है संकट के समय, वो कनेक्शन जो है एकदम पावरफुल रहता है। परमेश्वर की जो चाहत, परमेश्वर का जो मांग हमें परमेश्वर के पास और वो समस्या में लेकर जाती है। तो इस भजन को हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे कि दाऊद का जीवन कैसा था, दाऊद किस समस्या में था। आप लोग पहला और दूसरा वचन को इसमें आप पढ़ेंगे तो पहला वचन में क्या लिखा है? हे मेरा परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। सबसे पहला दाऊद क्या कहता है? मुझे मेरे शत्रुओं से बचा और मेरे विरोधियों से बचा। तो हमें किससे समस्या है? हमारे शत्रु या हमारे विरोधी। अधिक से अधिक दाऊद के जीवन में इस अध्याय में पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो दाऊद अधिक से अधिक जो सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है या संकट के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, मेरे शत्रुओं से मुझे छुड़ा, मेरी वेदनाओं से मुझे बचा करके दाऊद क्या करता है? प्रार्थना करता है। आगे हम लोग पढ़कर देखेंगे कि दाऊद की जीवन कैसे थी, दाऊद किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करता है या मांग करता है, वो हम लोग देखेंगे। दूसरा वचन में लिखा है, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर। यहाँ पर 4 प्रकार के लोग हैं। एक है शत्रु, दाऊद क्या बोलता है? मेरे शत्रुओं से मुझे बचा। दूसरा क्या बोलता है? मेरे विरोधियों से मुझे बचा। तीसरा क्या बोलता है? मेरे बुराई करने वालों से मुझे बचा। और चौथा क्या बोलता है? मेरे हथियारों से मुझे बचा। तो दाऊद का जीवन आप अभी थोड़ा सोच कर देखिए, उसके जीवन में किस प्रकार के लोग हैं या उसके विरुद्ध कितने प्रकार के लोग हैं। एक हैं जो उसके विरोध करते हैं, सबसे पहला देखिए। एक है जो उसके शत्रु हैं, जो एनिमी, पहला उसके शत्रु लोग हैं। दूसरा जो है उसके विरोध करने वाले। तीसरा जो है उसके लिए बुराई करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है। जो शत्रु, अगर दाऊद कुछ करता है तो उसका बुराई करने के लिए एक सेट ऑफ पीपल है। चौथा आप देखेंगे तो उसको हत्या करने के लिए एक प्रकार के लोग हैं। तो इससे जो खतरनाक जीवन दाऊद जो जी रहा था, शत्रुओं के बीच में से, विरोधियों के बीच में, उसके हथियारों के बीच में या बुराई करने वालों के बीच में, इस समय में इस मार्ग में रहते हुए भी दाऊद क्या करता है? परमेश्वर की जो स्तुति करता है या परमेश्वर के लिए भजन गाता है। उसका नीचे आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा है? क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं, हे यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं है। आप अभी जरा सोच कर देखिए दाऊद क्या बोल रहा है? मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है। एक ऐसा मनुष्य जिसका कोई दोष नहीं, एक ऐसा मनुष्य जिसका कोई पाप नहीं,
फिर भी उसके जीवन में कौन है? 4 प्रकार के लोग। फिर भी उसके जीवन में कौन है? शत्रु हैं। फिर भी उसके जीवन में कौन है? विरोधी हैं। फिर भी उसके जीवन में कौन है? उसकी बुराई करने वाले लोग हैं। फिर भी उसके जीवन में कौन है? उसकी हत्या करने वाले लोग हैं। आप अभी अपने जीवन को जरा सोच कर देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में ऐसा कोई कम से कम ना होगा कि जो आपकी हत्या करना चाहे। बुराई लोग होंगे जो हमारी बुराई करते हैं। ये संसार में बुराई लोग, ऐसे एक ग्रुप ऑफ लोग रहेंगे, हम कुछ भी करें, हम लोग अच्छा करें या बुराई या कुछ बुराई करें, उसमें से हर एक जन को बुराई दिखने वाला एक लोग रहते हैं। वो तो हर एक जीवन में रहता है, दाऊद के जीवन में भी था। दूसरा है विरोध करने वाले हैं। कोई बड़ा मनुष्य है तो उसका कोई विरोध करने वाले लोग उड़ जाते हैं। जैसा कोई नेता है समझो, तो उसका अपोजिट पार्टी वाले लोग रहते हैं। उनका काम क्या है? उनका विरोध करना। वो लोग अच्छा करें या बुरा, अच्छा करेंगे तो भी उसमें से कुछ ना कुछ कमी निकाल के वो लोग क्या करते हैं? उनका विरोधी करते हैं। तो ये बड़े लोगों के बीच में आता है। तीसरा कौन है? शत्रु लोग। शत्रु किसके बनते हैं? अगर समझो कोई मनुष्य भी हो, या कुछ बुरा करो या कुछ अच्छा करो, शत्रु संसारिक जीवन में शत्रु लोग बन जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या प्रयास करना है? कैसे शत्रु लोग हमें नहीं बनाना है। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने शत्रुओं से भी क्या करना है? प्रेम करना है। हमारा जीवन में हमारी कोई शत्रु नहीं रहना है। और चौथा, इसके जीवन में कौन था? इसके हथियार है। लोग क्या चाहते हैं? कि दाऊद की हत्या कर रहे हैं। इस एक प्रकार के लोग दाऊद की हत्या कर दे, ऐसे लोग हैं। आप यीशु मसीह का जीवन को भी आप सोच कर देखिए। उनके पीछे भी 4-5 सेट ऑफ पीपल उनके पीछे भी जाया करते थे। कोई लोग उनसे अच्छाई पाने के लिए जाया करते थे, कोई लोग उनसे भलाई पाने के लिए जाया करते थे, कोई लोग उनके चंगाई पाने के लिए जाया करते थे, या कोई उनमें कुछ कमी है क्या वो ढूंढने के लिए जाया करते थे। और यीशु के पीछे भी हत्यारे भी पीछे पड़ गए थे कि ये उस जगह में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है तो उनकी हत्या कर देना है करके। तो आप हमारी जीवन कैसी है? इसके नीचे क्या लिखा है? तो तीसरा वचन में ही देखिए, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। उनके दाऊद के विरुद्ध कौन उठता है? बलवंत लोग। अभी जरा अपने जीवन के बारे में सोच कर देखिए। बलवंत लोग, उसके ये 2 वचन को जरा, ये तीसरा वचन में ही 2 लाइन को जरा साथ में पढ़कर देखिए। मेरा कोई दोष नहीं। वो परमेश्वर से क्या करता है, क्या बोलता है, क्या प्रार्थना करता है? मेरा कोई दोष नहीं या मेरा कोई पाप नहीं। फिर भी ये जो बलवंत लोग हैं, ये लोग मेरे विरुद्ध आ रहे हैं। हमारा कोई दोष नहीं। अपनी जीवन में भी जरा बहुत बार ये हो चुका होगा या हो रहा होगा। आपके जीवन में भी ये रोजमर्रा के जीवन में हर एक जो डेली रूटीन है इसमें होता होगा कि हमारा कोई दोष नहीं हो, या हमने कुछ गलती नहीं किया होगा, या हमने कुछ पाप नहीं किया होगा, फिर भी लोग हमारे ऊपर झूठे गवाही या फिर जो झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए होंगे या आपके ऊपर लगाए होंगे। आप ऐसे बीच में से जाते होंगे कि लोग आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हो, जो कार्य आपने कभी किया ही ना हो उसका इल्ज़ाम भी आपके ऊपर बोल दे हो, या आपने कुछ कार्य किसी के खिलाफ बोला भी ना हो लेकिन वो लोग यही व्यक्ति ने बोला है करके झूठ बोला हो। इसके नीचे क्या लिखा है? क्योंकि वो लोग कौन हैं? बलवंत लोग हैं। बलवंत लोग क्या कहते हैं? अपना बल का इस्तेमाल करके ये सब कार्य क्या कर रहे हैं? दाऊद के खिलाफ कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी जो बलवंत लोग हैं, समझो हमारे पड़ोसी हो गए या कोई आजू बाजू के लोग हो गए या कोई बड़े लोग हो गए, उनके बल के कारण, उनके पास पैसों का बल हो सकता है, या उनके पास जो है जो बड़े पहचान का बल हो सकता है, या कुछ अन्य जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता हो कि वो लोग क्या है? हमसे बलवान है। जो हम किसी में कमी हो या उसके पास सब कुछ हो तो उन्हें क्या लगता होगा कि इसके पास कुछ नहीं है, इसको पूछने के लिए कोई नहीं है, मैं ताकतवर हूँ, ये इसके पास ताकत भी नहीं है, इसके पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरी इसका कुछ पहचान नहीं है, मेरा इनका पहचान है, मैं इसको जानता हूँ उसको जानता हूँ करके आपके ऊपर दबाव डालते होंगे, या आपके ऊपर कुछ झूठा इल्ज़ाम लगाते होंगे, या आपके शत्रु बनकर आपसे लड़ाई करते होंगे, या आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ बोलते होंगे। आप ऐसे लोग, आप नीचे पढ़ कर देखिए दाऊद किस तरह से इसको टैकल करता है, परमेश्वर से किस तरह से प्रार्थना करता है, परमेश्वर को कैसे ये भजन के द्वारा परमेश्वर के पास किस तरह से जाता है। नीचे आप लोग पढ़कर देखेंगे तो 6वां वचन में आप देखेंगे तो क्या लिखा है? वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुर्राते हैं और नगर के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते हैं। ये लोग कौन है? जो ये बलवान अपने आप को कहते हैं वो लोग कौन है?
जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं, जो अपने आप को सारे कार्यों में ताकतवर मानते हैं, वो लोग कौन हैं? शाम को इधर उधर ऐसे ही भटकते रहते हैं। रात को शाम के समय में आप लोग बाहर देखेंगे तो इधर उधर एक एक झुंड बनाते हुए एक जो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, किसी के ऊपर ठट्टा करते हैं, किसी को कुछ करते हैं। उनको दाऊद क्या करता है? ये लोग सांझ के समय कुत्ते के समान गुर्राते हैं, नगर के चारों ओर घूम फिर करते हैं। तो इनको दाऊद कहता है कि ये लोग एक कुत्ते के समान रहते हैं। और फिर भी परंतु 8वां वचन में क्या लिखा है देखियो, परंतु हे यहोवा तू उन पर हंसेगा और तू सब अन्य जातियों को ठट्टों में उड़ाएगा। इस वचन को ध्यान से जरा इसको पढ़कर देखिए। परमेश्वर क्या करेगा? इनको हंसी का पात्र बनाएगा। वो लोग जो अपने आप को बलवान समझते हैं, वो लोग ये समझते होंगे कि आप और हम हंसी के पात्र हैं। कभी कभी वो लोग हमको टट्टों में उड़ाते होंगे, हमारे खिलाफ कुछ बोलते होंगे। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में लगता होगा कि हम जो है बहुत वीक हैं, उनसे बराबरी नहीं कर सकते, या वो लोग बहुत ताकतवर है करके वो लोग हमारे ऊपर हंस सकते हैं। लेकिन फिर भी वचन क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है? देखो, परमेश्वर क्या करेगा? उन पर हंसेगा और परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें टट्टों में उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सांसारिक बल हो सकता है, फिर भी हमारे पास क्या है? आत्मिक बल है। परमेश्वर हमारे साथ दिन भर दिन रात हमारे साथ, जो इस संसार को बनाया, इस संसार में जो है उससे भी महान और उससे भी ताकतवर कौन किसके पास है? हमारे पास है। परमेश्वर हमारे साथ रहते समय कौन हमारे विरुद्ध उठ सकता है? तो उस तरह से तो इस समय में कौन हंसी का पात्र बनेगा? इस समय में किसकी ठट्टा उड़ाई जाएगी? एक दिन जब परमेश्वर आएगा और न्याय करेगा और हमें अपने स्वर्ग राज्य में ले जाएगा, तब हंसी का पात्र कौन बनेगा? तब टट्टे में किसे उड़ाया जाएगा? तो ये सब जरा सोच कर देखिए। दाऊद का सोच किस तरह से देखिए। संसारिक कार्य में है, लोग उसके विरुद्ध है, फिर भी दाऊद को देखिए क्या कहता है कि परमेश्वर इन टट्टों में उड़ाएगा, परमेश्वर इन पर हंसेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र जो है पृथ्वी के इन कार्यों में नहीं, उसकी नज़र जो है आत्मिक कार्यों में, उसकी नज़र जो है दूर के कार्यों में, परमेश्वर की आगमन के ऊपर उसकी नज़र, दूर की सोच हमारे अंदर रहनी चाहिए। लेकिन अनेक बार हम लोग क्या करते हैं? इस संसारिक कार्यों में ही अपने आप को दबा लेते हैं कि ये बाजू वाला कुछ बोल रहा है या कोई दूसरा कुछ बोल रहा है, वो लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, वो लोग मेरे ऊपर कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कहकर ही तो परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है। ऐसा सोच कर ही हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को दबा देते हैं। लेकिन हमारी सोच कैसा रहना है? दूर की सोच रहना है कि परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें उन पर टट्टों में हंसाएगा, परमेश्वर उन पर हंसेगा। और नीचे 9वां वचन में देखिए क्या लिखा है, हे मेरे बल मुझे तुझ पर आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ कौन है? हमारा केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा ऊंचा गढ़ है। इसके आखिरी 2 वचन में देखेंगे, 15 वचन में आप फिर से एक बार देखेंगे, 15 और 14 में, वे सांझ के समय लौटकर कुत्ते के समान घर्राते हैं और नगर के चारों ओर फिर घूमते हैं। दाऊद फिर से ये कह रहा है कि ऐसे प्रकार के लोग कौन है? कुत्ते के समान है। इनके सामने हमें नहीं जाना है। ये लोग जो है कीचड़ को हमारे ऊपर डालेंगे, इनके ऊपर सामने नहीं जाना है। ये लोग हमारे ऊपर हंस सकते हैं, हमें ठट्टे का पात्र बना सकते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ मतलब नहीं, क्योंकि क्या है? परमेश्वर उन पर हंसेगा और परमेश्वर उन्हें ठट्टे का पात्र बनाएगा। और नीचे और 15 वचन में क्या लिखा है? वे लोग, ऐसे प्रकार के लोग जो अपने आप को बलवान समझते हैं, जो अपने आप को आपसे बड़ा समझते हैं, जो समझते हैं कि आप बहुत वीक है और वो लोग बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोग क्या है? 15 वचन में देखिए क्या लिखा है, वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते हैं और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? वो लोग कभी तृप्त नहीं होते हैं, उनका जीवन में कभी संतुष्टि नहीं आती है, वो लोग तृप्त की जीवन कभी नहीं जीते हैं और वे टुकड़े के लिए मारा मारा फिरते हैं। टुकड़े के लिए, एक रोटी का टुकड़े के लिए भी, या कुछ भी हो, संसारिक कुछ भी हो, वो सब एक टुकड़ा है। उन संसारिक कार्यों का एक एक टुकड़े के लिए वो लोग क्या करते हैं? मारा मारा फिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? धर्मी लोग जो हैं, टुकड़े के लिए इधर उधर फिरना कभी उसकी आंखें नहीं देखी, ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो हमें और उनमें कितना सारा अंतर है। ये अंतर जो है परमेश्वर पर विश्वास रखने में और परमेश्वर के दिखाए हुए मार्गों पर चलने में और परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ परमेश्वर को दृढ़ गढ़ मानने में, ऐसा मानेंगे तो ही ऐसा विश्वास हमारे अंदर रहेगा और तभी ऐसे सब कार्य होगा। 16 वचन में क्या लिखा है?
परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। 17 वचन में, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ और तू मेरा करुणामय परमेश्वर है। दाऊद इस अध्याय में बार बार कहता है कि परमेश्वर ही उसका क्या है, द्रुतगढ़ है। परमेश्वर ही उसका द्रुतगढ़ है। जो हमने पढ़ा था 15 वचन में, वो लोग रात को क्या करते हैं, गुर्राते हैं, और दाऊद क्या करता है, सांझ के समय में क्या करता है, परमेश्वर की भजन गाता है। संकट के समय इसमें क्या लिखा है 16 वचन में, भोर को वो तेरी जय जयकार का, करुणा का जय जयकार करेगा। तो उनमें और हम में कितना अंतर है देखिए। वो लोग सांझ को मारे मारे फिरते हैं और दाऊद शाम को परमेश्वर का जय जयकार करता है। कितना अच्छा जीवन है। तो हमें इस अध्याय से क्या सीखने मिलता है? दाऊद का जीवन जो है, हमने देखा कितने सारे लोग उसके विरोध, उसके शत्रु हैं, उसके विरोधी के लोग हैं, उसके हत्यारे हैं, उसके बुरी भलाई बोलने वाले लोग, ऐसे प्रकार के लोगों के बीच में दाऊद रहते हुए भी, इनकी कार्य सुनते हुए भी दाऊद क्या करता है, परमेश्वर को द्रुतगढ़ मानकर परमेश्वर को क्या करता है, जय जयकार करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की भजन करता है। अब अपने आप को सोच कर देखिए कि हम कैसे हैं। हम भी दाऊद के समान है क्या? दाऊद किस तरह से परमेश्वर की स्तुति किया करता था? दाऊद कौन सी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, दाऊद क्या करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। लोग उसके विरुद्ध आए या ना आए, उसको कोई परवाह नहीं। लोग कुछ बोले या ना बोले, उसका कुछ परवाह नहीं है, लेकिन हर स्थिति में वो क्या करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। ये संसारिक लोग जो हमारे विरुद्ध आते हैं या आपके विरुद्ध आते हैं, इनको हमें कुछ बड़ा पात्र न बनाते हुए, हमारे जीवन में इनको बड़ा भाग न देते हुए, इनसे ऊपर उनकी दाऊद की सोच कैसी थी, दूर की नज़र कि परमेश्वर इन पर हंसेगा। कब हंसेगा? परमेश्वर जब न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर न्यायी है, वो हर एक कार्य का क्या करता है, न्याय करता है। अभी हम लोग थोड़े समय जिस स्थान में हैं उसी स्थान में हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। दाऊद ने किस तरह से परमेश्वर की आराधना किया, दाऊद ने किस तरह से परमेश्वर का भजन गाया। कोई भी स्थिति में है, स्थिति कुछ भी हो, स्थिति हमारे विरुद्ध का ही क्यों ना हो, हम में लोग दबाए ऐसा क्यों ना हो, लोग बलवान होने के निमित्त हम पर प्रबलता ही क्यों ना करते हुए, हमारे विरोधी क्यों ना आए, हमारे विरोधी क्यों ना बोले, हमारी बुरी भलाई क्यों ना बोले, जो कार्य हमने नहीं किया वो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम ही क्यों नहीं लगाए या ना लगाए, हमारी सोच फिर भी क्या रहना है, मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर अच्छा है, मैं परमेश्वर मेरा द्रुतगढ़ है। कोई भी स्थिति में, कोई भी वेदना में, कोई भी कार्य में परमेश्वर कौन है, वही मेरा द्रुतगढ़ है। दाऊद का यही कार्य परमेश्वर, यही सोच के साथ दाऊद कितना सारा भजन लिखा है। सब में आप लोग देखेंगे तो वो परमेश्वर को ऊंचा दिखाता है। ये सब कार्यों में हम लोग अधिक से अधिक भजन में ये सब पढ़ सकते हैं कि कोई मेरे विरुद्ध आ रहा है या कोई मुझे मार रहा है या कोई मेरे विरुद्ध कुछ बोल रहा है, फिर भी आप उसी भजन में फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर भी परमेश्वर मेरी आँख तुझ पर है, मेरी नज़र तुझ पर है, मैं तेरी आराधना करूँगा, मैं तेरी जय जयकार करूँगा। इसी तरह से एक सोच, इसी तरह का एक सोच, दाऊद जैसा एक सोच हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं तेरी ओर देखूँगा, मैं तेरी ओर देखूँगा। परमेश्वर कोई भी स्थिति में, मेरे जीवन में कुछ भी स्थिति हो, स्थिति बुरी हो या अच्छी हो, फिर भी मैं तेरी ओर देखूंगा। दाऊद जिस तरह से आपका स्तुति करता है परमेश्वर, उसके जीवन में कितनी संकट और वेदना के बीच में भी प्रभु वो आपको एक पहलोटा स्थान देता था, उसी तरह से मैं भी आपको पहलोटा स्थान देने के लिए मुझ में अनुग्रह दीजिए, मुझ में अनुग्रह दीजिए। हम सब परमेश्वर से मांगेंगे, हम सब परमेश्वर से मांगेंगे। हम सब जन आँख बंद कर एक थोड़े समय परमेश्वर को स्तुति करेंगे, थोड़े समय परमेश्वर को स्तुति करेंगे। परमेश्वर की ओर देख कर, परमेश्वर धन्यवाद
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। इतने दिन मैं आसपास के लोगों के ऊपर ही मेरी नज़र पड़ी रही। आसपास के लोग जो मेरे विरुद्ध उठते हैं, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरी नज़र उन पर ही थी। लेकिन परमेश्वर अब से ऐसा नहीं, मेरी नज़र केवल आप पर होगी, मेरी नज़र केवल आप पर होगी। पिता, ये लोग कुछ भी कहे, ये लोग मेरे विरुद्ध कुछ भी बोले, ये लोग मेरी ठट्ठा क्यों ना उड़ाए, ये लोग मुझे हंसी का पात्र क्यों ना बनाए, फिर भी परमेश्वर मेरी नज़र आप पर ही होगी, क्योंकि मेरा बल और मेरा द्रुत गढ़ आप ही हो करके हम सब जन परमेश्वर की ओर देखेंगे, हम सब परमेश्वर की ओर देखेंगे। वो परमेश्वर अच्छा है, वो परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर मुझे बल दीजिए करके मांगिए, परमेश्वर मुझे बल दीजिए करके बोलिए। परमेश्वर इस संसार में जीने के लिए, इस प्रकार के लोगों के बीच में से, इन शत्रुओं के बीच में, इन विरोधियों के बीच में, ये जो मेरी बुराई करते हैं इनके बीच में, मेरे हथियारों के बीच में, परमेश्वर आपके लिए गवाही का रूपी जीवन जीने के लिए आप मुझे बल दीजिए करके मांगिए, आप मुझे बल दीजिए करके बोलिए। परमेश्वर मुझे बलवंत कीजिए करके बोलिए, परमेश्वर मुझे बलवंत कीजिए करके बोलिए। एक जंगली सांड का सा परमेश्वर एक बल मुझ में दीजिए करके बोलिए। कोई मुझ पर प्रबलता ना करते हुए, ये संसारिक लोग मुझ पर प्रबलता ना करते हुए, वे बलवान होने के निमित्त मुझ पर प्रबलता ना करते हुए, परमेश्वर आप मेरे साथ खड़े होकर हर एक लोग, इस संसार के हर एक लोग इस कार्य को जानने के लिए मुझ में बल दीजिए करके मांगिए, मुझ में बल दीजिए करके मांगिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord, 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 thank you Lord। सारे विरोधों को करके दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गुज़री जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अब्बा तेरी जय हो, हम सब उसकी ओर देखकर कहेंगे, अब्बा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। सारे विरोधों को करके दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो,
आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। हम सब परमेश्वर की ओर देखकर, परमेश्वर सारे विरोधों से मुझे कर दूर, मेरे सारे विरोधियों से मुझे दूर कर हर समय मुझे स्तुति से रखा भरपूर। दाऊद का जीवन को आप जहाँ सोच कर देखिए, सारे विरोधियों से करके दूर। कितने विरोधियों थे, कितनी वेदना थी, सबसे दूर कर और हर समय सिर्फ दूर किया उतना ही नहीं, सिर्फ उसे बचाया उतना ही नहीं, हर समय क्या किया, उसे स्तुति से रखा भरपूर, स्तुति से भरकर रखा। कितना अच्छा परमेश्वर है। और रोज़ रोज़ हमें क्या किया है, भोजन से तृप्त किया है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। एक बार फिर बोलिए, सारे विरोधों से करके दूर, सारे विरोधों से करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो। परमेश्वर की ओर देखकर, राजा तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे ढका है। ओ अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। थैंक यू लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा पिता है। वो हमारा द्रुतगढ़ है, वो हमारा द्रुतगढ़ है। जीवन में कितने संकट आए, तकलीफ आए, उनके बीच में से चलने के लिए हमें शक्ति देता है, सामर्थ देता है और रोज़ रोज़ हमें तृप्त करता है। जैसा हमने इस भजन में पढ़ा था, जो लोग आपके विरोध आते हैं, जो लोग अपने आप को आपसे बलवान समझते हैं, वो लोग कभी तृप्त नहीं होते। उनके जीवन में तृप्त ऐसा कभी उन्हें नहीं होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर देखिए, रोज़ रोज़ क्या करता है, हमें तृप्त करता है, अपने वचन से हमें तृप्त करता है। हमें परमेश्वर तृप्त करने वाला पिता। हम परमेश्वर की ओर देखेंगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अपनी सर झुकाकर थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद पिता, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। इस अच्छे समय में भी परमेश्वर कुछ समय आपके वचन को ध्यान करने के लिए आपने मदद किया, इसे धन्यवाद करते पिता। जिस तरह से इस दाऊद का जीवन से, इन भजनों से हम लगातार परमेश्वर कुछ ना कुछ सीख कर, परमेश्वर आप हमारा दुर्गढ़ है, आप हमें बचाने वाला परमेश्वर, आप हमें सामर्थ्य करने वाले परमेश्वर। जो लोग हमारे विरुद्ध आते हैं उनके खिलाफ आप उन्हें ठट्टा में उड़ाने वाले परमेश्वर, आप हमें रोज रोज तृप्त करने वाले पिता परमेश्वर। हर एक दिन हमें संभाल कर आया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। इस समय में भी परमेश्वर इस आराधना के द्वारा आप हमारे बीच में उतरे, इसलिए धन्यवाद। आपकी प्रसन्नता के लिए धन्यवाद। इस आराधना के समय में परमेश्वर जो भी लोग इस आराधना में भाग लिए हैं उन हर एक को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। हर एक के जीवन में आप उनको रोज़ रोज़ तृप्त करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन से उनकी संकट, उनकी वेदना है या परमेश्वर लोग अगर उनके विरुद्ध उठ रहे हो, रक्षा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप उनकी रक्षा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। लोग अपने बलवान होने के निमित्त आपके लोगों को, आपके बच्चों को परमेश्वर उनके ऊपर कभी प्रबलता न करना पाए पिता, आप उनके साथ है कर हर एक व्यक्ति, इस संसार के हर एक लोग परमेश्वर इसे जानने के लिए हम लोग प्रार्थना करते पिता। आपके लोगों की रक्षा कीजिए, आपके लोगों को बचाइए, रोज रोज परमेश्वर उनको तृप्त कीजिए, रोज रोज परमेश्वर उनको भोजन दीजिए, उनको परमेश्वर ढकने के लिए अच्छा कपड़े दीजिए, उनको परमेश्वर इस संसार में रहने के लिए अच्छी सामर्थ दीजिए। इतना ही नहीं परमेश्वर, आपका परमेश्वर गवाही रूपी जीवन जीने के लिए मदद कीजिए। आपका सामर्थ उन पर रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर अगर कोई बीमार में है तो उन्हें छुटकारा देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर इस पैंडेमिक के दिनों में किसी को भी कोई प्रकार की बीमारी ना आते हुए हर एक को रक्षा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ से हर एक को भरने के लिए धन्यवाद। आगे के समय आपके हाथों में सौंप कर हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुनो प्रभु का स्वर्गीय पिता, आमीन। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்க எல்லாருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துரை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देते हैं। இந்த அருமையான ஓய்வு நாள் காலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறோம்। इस विश्राम दिन में आपको देखने में हमें बड़े आनंद लगता है। நிச்சயமாகவே நீங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் ஆண்டவருக்கு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம்। निश्चय आप लोग भी आनंदित से रहेंगे करके हम विश्वास करते हैं। நாம் இவ்வளவு நேரமாக பாடல்களை படித்தோம், इतने समय हमने गीत गाए, மெடிடேஷன் பண்ண கிருபையை கொடுத்தார், वचन ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, ஆராதனை நடத்த கர்த்தர் கிருபையை கொடுத்தார், आराधना चलाने को परमेश्वर ने अनुग्रह நாம் किया। இப்பொழுது கொஞ்ச நேரமாக अभी हम थोड़ी देर கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள்ள நம்ம கடந்து செல்லுவோம்। परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाएं। ஏன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, அவருடைய வார்த்தையில ஜீவன் இருக்கிறது, उसके वचन में जीवन है, அவருடைய வார்த்தை மூலம் கர்த்தர் நம்மை தேற்றுகிறவர்। उसका वचन के द्वारा हमें वो दिलासा இந்த देता நாள் है। முழுதுமாக तो ये दिन भर पूरा கர்த்தர் உங்களோடு பேசும்படியாக, परमेश्वर आपसे बातें करने के கர்த்தர் लिए, உங்களை அதிகமாக உயர்த்தும்படியாக, परमेश्वर आपको अधिक ऊंचा அவருடைய करने, வார்த்தையினால கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்தும்படியாக उसके वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ऊंचा करने के लिए। வசனத்துக்குள்ள கடந்து செல்லுவோமா? क्या हम वचन की तरफ जाएं? எல்லாரும் ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? क्या आप लोग तैयार हैं? கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களோடு பேசுவார்। निश्चय परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। உன்னத பாட்டு श्रेष्ठ गीत 1ஆம் அதிகாரம் पहला अध्याय அப்படியே 3-4 उसका तीसरा और चौथा நான் वचन। தமிழ்ல முதலா படிக்கிறேன், பிற்படி இந்தியில படிக்கலாம்। உமது பரிமளங்கள் இன்பமான வாசனை உள்ளவைகள், உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலமாயிருக்கிறது, ஆகையால் கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள்। என்னை இழுத்துக்கொள்ளும், உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம்। ராஜா என்னை தமது அறைகளிலே அழைத்து கொண்டு வந்தார், நாங்கள் உமக்கள் களி கூர்ந்து மகிழுவோம்। திராட்சை ரசத்தை பார்க்கிலும் உமது நேசத்தை நேசிப்போம், உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள்। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय तीसरा और चौथा वचन। तेरी भांति भांति के इत्रों के सुगंध उत्तम है, इसीलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती हैं। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा वो मुझे अपने महल में ले आए हैं, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाखमधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அத சாலமோன் பாடின
உன்னத பாட்டு என்று இந்த அதிகாரம் தொடங்குகிறது. ये वचन जो श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का गीत है करके ये शुरुआत में कहा गया நம்ம இப்போ है. ரெண்டு வசனத்தை வாசித்தோம். अभी हमने दो वचन को हमने पढ़े. இந்த ரெண்டு வசனத்திலும் इस दोनों वचन में அங்க ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पे कार्य कहता அந்த है. மூணாம் வசனம் கடைசி பாகத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. तीसरा वचन के आखिरी भाग में है. ஆகையால் इसीलिए கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं. நாலாம் வசனத்துல வரும் பொழுது, चौथा वचन में आते அந்த हैं. கடைசி பாகத்துல வரும் பொழுது, उससे आखिरी भाग में आते समय உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है. நேசிக்கிறார்கள் என்ற தலைப்பில இன்று நம்மோடு அவர் பேசுவாராக. प्रेम करते हैं करके इस टॉपिक से आज हम बातें करेंगे. யாரை நேசிக்கிறாங்களா? कौन कौन प्यार करते हैं? கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறான்னு உன்னத பாட்டில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. श्रेष्ठ गीत में कहा है कि कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं. உத்தமர்கள் உம்மை சேவிக்கிறான்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. सच्चे लोग तुझसे प्रेम रखते हैं. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு மனிதனும், परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार हुए हर एक அது व्यक्ति யாராக இருந்தாலும் चाहे वो कोई भी क्यों ना हो அவரை நேசிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. उससे प्रेम करने बिना कोई रह ही नहीं पाएंगे. இயேசுவை கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது, जरा यीशु मसीह को आप अपने और देखते அவரை समय கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து ஆழமாக நம்ம கடந்து செல்லும் பொழுது, जब हम गहराई से उसकी और हम सोचेंगे तो ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடையதான மனதுருக்கம், यीशु मसीह का वो तरस, அவருடைய அன்பு, उनका प्रेम அவருடையதான இரக்கங்கள் और उनकी दया நாம் அவரை நேசிக்கும்படியாக நம்மை தூண்டி விடுகிறது. हमें उससे प्रेम रखने के लिए उत्सुक करता है. இந்த உலகத்துல பாருங்க, इस दुनिया में देखिए நம்மை अनेகர் நேசிக்கலாம், हमसे अनेक लोग प्रेम करते ஆனா होंगे, எல்லாரும் நம்ம உண்மையா நேசின்னு சொல்ல முடியாது. लेकिन सब लोग हमसे सच्चाई से प्यार करते करके இந்த कभी नहीं உலகத்துல बोल ஒரு सकते. போலியான அன்பும் இருக்கிறது, ये दुनिया में झूठा प्यार भी है, ஒரு சில உண்மையான அன்பும் இருக்கிறது. कुछ लोग के पास सच्चा प्यार भी ஆனா है, ஆண்டவருடைய அன்பானது लेकिन परमेश्वर का जो அது प्रेम है தூய்மையானது, वो एकदम शुद्ध है, அது பரிசுத்தமானது, वो पवित्र है, அது உண்மையானது. वो सच्चाई है. அதுதான் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. इसीलिए कहा है உத்தமர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள், सच्चे लोग तुझसे प्रेम रखते हैं, கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं. இந்தியா தேசத்தின் தந்தையாகிய மகாத்மா காந்தி சொல்வது நினைவுக்கு வருகிறது. भारत देश के अपने पिता जो महात्मा गांधी जी कहते हैं, அவர் என்ன சொல்றார் என்று சொன்னால், क्या कहते हैं? அதாவது கிறிஸ்தவர்களுக்குள் இருக்கும் மார்க்க பேதங்கள் நிமித்தமும், मसीह लोगों के जो मार्ग है, அதாவது சடங்குகள், பாரம்பரியங்கள், சோதரம், சண்டைகள் நிமித்தமும் रीति रिवाज और परंपरा के और लड़ाई के द्वारा கிறிஸ்தவர்களை நான் வெறுக்கிறேன். मसीह लोगों के लिए इसीलिए मैं नफरत करता நம்முடைய हूँ. மகாத்மாதி கூட சொல்லுகிறார், अपना महात्मा जी लोग यही कहते हैं, ஆனால் கிறிஸ்துவையோ लेकिन यीशु मसीह को என்னால் புறக்கணிக்க முடியவில்லை. मैं उनसे नफरत नहीं करता அவர் हूँ, மேல் எனக்கு அளவற்ற மரியாதை உண்டு, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर मुझे बहुत सारा आदर है. அவர் மேல் எனக்கு அன்பும் உண்டு என்று அவர் சொன்னதை நாம் வாசிக்க முடிகிறது. हाँ, मैं उससे प्यार भी करता हूँ करके हम पढ़ सकते அதே हैं. போலதான் उसी நம்முடைய प्रकार தேசத்தின் ஒவ்வொரு தலைவர்களும் हमारे देश में हर एक नेता இயேசுவை நேசிக்கிறார்கள். यीशु मसीह से प्यार करते அவருடைய हैं, போதனைகள் மேல் அவர் பிரியமா இருக்கிறார்கள். उनके उपदेश पे प्रिय है. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा यीशु मसीह இந்த பூமியில் அவர் வாழ்ந்த பொழுது इस दुनिया में जब जीते समय அவருடைய அன்பு उनका प्रेम உத்தமர்களாகிய எல்லாரையும் சோதரம் வேகமாக அவர் பக்கம் இழுத்தது. सच्चाई रूप से सभी को अपनी ओर खींचा गया. பாருங்க, देखिए சோதரம் பேதுரு தன்னுடைய வலையையும் पत्रस अपने जाल को படகை விட்டு விட்டு और अपने जो नाव को छोड़कर அவரை பின்பற்றினார். उनके पीछा किया. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் நீங்க பார்க்கும் பொழுது प्रेरित यूहन्ना को आप देखते அவருடைய समय அன்பினால் அவன் இழுக்கப்பட்டு वो अपने प्रेम से खींचा அவருடைய गया மார்பில போய் சாய்ந்தான், நிலைப்பாடு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. और यीशु के छाती पर वो लेटा गया. நீங்க மத்தேயு நீங்க பார்க்கும் பொழுது मत्ती में आप देखेंगे அவன் तो ஆயத்துறையில தன்னுடைய வேலையை விட்டு விட்டு अपने उस जो ऑफिसर को छोड़कर கர்த்தர் மேல் வைத்த அன்பினால परमेश्वर को ऊपर रखा हुआ उस அந்த प्रेम உலக को, வேலையை விட்டு விட்டு संसार का काम அவன் छोड़कर இயேசுவுக்கு அவன் பின் சென்றான். यीशु का पीछे हो காரணம் लिया. என்ன? ये सब कारण क्या है? இயேசுவின் மேல் வைத்த அன்பினாலே பரிசுத்தவான்கள் உத்தமர்கள் இயேசுவை நேசித்தார்கள். यीशु मसीह के ऊपर रखा हुआ प्रेम के कारण वो लोग सच्चाई से किए. நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லி मैं प्यार करता हूँ அது बोलकर கிரியைகளில் செய்யாத பட்சத்துல अगर अपने
कामों में नहीं करेंगे, எந்த அன்புமே அது உண்மையான அன்பு என்று சொல்ல முடியாது. कोई भी प्यार वो सच्चा करके हम नहीं बोल எந்த ஒரு सकते। மனுஷனா இருக்கலாம், चाहे कोई भी मनुष्य क्यों ना எந்த हो, ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கலாம், चाहे कोई भी प्रभु का जन क्यों வெறும் ना हो, வாயினாலே சொல்வதை விட अपने मुंह से कहने से அதை बजाय கிரியையினாலே செய்து நம்ம காட்ட வேண்டும். अपने हाथ के काम से कर दिखाना है। பரிசுத்தவானதை செய்தார்கள், पवित्र लोग ने वो काम किए, ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்தார்கள், परमेश्वर के लोग ने सेवा की, ஆண்டவருக்காக மரிப்பதற்கும் தங்களை ஆயத்தமாக அவர்கள் கடந்து வந்தார்கள். परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी वे लोग तैयारी में हो உயர்ந்த गए। பதவியில் எல்லாம், ऊंचे पद में रहने நல்ல वाले, வேலையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் अच्छे काम में रहने அது वाले, எல்லாவற்றையும் விட்டு वो सब कुछ பாருங்க, छोड़कर இயேசுவை தேடி வந்தார்கள். यीशु के पीछे पीछे आए, இயேசுவுக்கு பின்பாக அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள். यीशु के पीछे हो लिए, அவருக்காக ஊழியம் செய்தார்கள். उनके लिए वो लोग ने सेवाकाई किए। பிரைஸ் எல்லாம். हालेलुया। முதல்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது पहला हम ஒரு देखेंगे பாவியாகிய ஸ்திரீ, एक पापी स्त्री, அவள் வந்து वो जो है இயேசுவின் மீது அளவற்ற ஒரு அன்பு வைத்தெழுந்தார். उसने यीशु मसीह के ऊपर वो अनगिनत प्रेम रखी थी। அவள் என்ன செய்தாள் என்று சொன்னால், क्या कहती है? லூக்கானு சுவிசேஷம் लूका रचित सुसमाचार 7ஆம் அதிகாரம் अध्याय 7 38 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 38 वचन में कहा அவள் है, இயேசுடைய பாத அருகே பின்னாக நின்று यीशु के पांव के पास पीछे खड़ी होकर அழுது கொண்டு रोती हुई அவருடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரினாலே நனைத்து उसके पांव को आंसुओं से தன் भिगाई தலைமையினால் துடைத்து और अपने सिर के बालों से पोंछने அவருடைய लगी பாதங்களை முத்தம் செய்து और उसके पांव पर बार-बार चूमकर பரிமள தைலத்தை பூசினாள். उन पर इत्र मला। இது ஒரு பாவியாக ஸ்திரியை குறித்து இந்த அதிகாரத்தில் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. इस अध्याय में इस पापिनी स्त्री के बारे में कहा गया இது है। ஒரு பாவம் செய்திருக்கிறாள். कुछ तो पाप की है, ஆனால் அது அவருடைய வாழ்க்கையில இது மனஸ்தாபத்தை உண்டாக்கிட்டது. उसके मन में एक प्रायश्चित पछतावा हो गया நான் है। ஒரு பாவி என்று அவள் தனக்குள்ளாக ஒரு சோத்திரம், ஒரு இருதயத்துல மாற்றத்தை அவள் கொண்டு வருகிறாள். वो अपने में मन में बदलावट लाती कि मैं एक पापी हूँ। இயேசு அங்க வரும் பொழுது जब यीशु उस घर पर थे, இயேசு வந்து இயேசுடைய பின்பாக வந்து यीशु के पीछे आई, சோத்திரம் பாருங்க, அழுது கொண்டே இருக்கிறாள். वो रोते रोते खड़ी है। எவ்வளவு ஒரு அழுது அந்த ஸ்திரீ அந்த 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 நாட்களிலே उस जमाने में நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் अब आपको पता है ஸ்திரீகளுடையதான அதாவது முடி வந்து நீளமாக இருக்கும். महिलाओं के जो बाल एकदम लंबे लंबे होते யூத हैं ஸ்திரீகள் மிக அழகாக இருப்பார்கள். और यहूदी स्त्रियां बहुत ही खूबसूरत रहती இன்றைக்கு है। நீங்க பார்த்திருக்கலாம். आज भी आप देखे होंगे। அப்ப அந்த ஸ்திரீயானவள் तो वो स्त्री பார் இயேசுவின் மேல வைத்த அன்பினால यीशु को पर रखा हुआ उतना प्यार அவருடைய से பாதங்களை தன் கண்ணீரால துடைத்து अपने पैरों को आंसुओं से भिगाई, தன் தலைமையினால துடைத்து अपने सिर के बालों से அவருடைய पोंछी, பாதங்களை முத்தம் செய்து उसके पांव को बार बार பரிமள छूकर தைலத்தை பூசண்டு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. और उन पर इत्र मला करके हम देखते இதை हैं। பார்த்து கொண்ட பரிசேயர்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள். इसे देखे हुए फरीसी लोग बड़बड़ाने இதை பார்த்து लगे, கொண்டு சொல்லுகிறார்கள், ये देखकर कहने लगे இவன் பாவியான ஸ்திரியா இருக்கிறாளே ये एक पापिनी स्त्री है, என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். ऐसा कहने लगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஸ்திரீ ये स्त्री இயேசுவை மிகவும் நேசித்தாள். यीशु से अधिक प्रेम रखी, இயேசுடைய இருதயத்தில் அவள் இடம் பெற்றாள். यीशु का हृदय में स्थान पकड़ தேவனுடைய ली। பிள்ளையே, प्रभु के जनों, இவள் வெறும் வார்த்தையினால் இயேசுவை நேசிக்கவில்லை. ये केवल परमेश्वर का अपने शब्द से प्रेम करना அவள் जताई, தன்னுடைய கிரியையினாலே अपने क्रिया से அவள் இயேசுவை நேசித்தன்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यीशु मसीह से प्रेम की। இவா வந்து ஒரு பாவியான ஸ்திரீ. ये एक पापिनी स्त्री அப்ப है। இயேசு சொல்லுதாரு, यीशु कहता है, சீமோனை பார்த்து சொல்லுதாரு, शिमोन को देख के कहता சீமோனே, है, हे உன் शिमोन, வீட்டுக்கு வந்தேன், मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तेरे घर पर ஆனா आया था, காலுக்கு கழுவ கூட தண்ணி தரவில்லை. तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं அந்த दिया। ஸ்திரியை பாத்தியா? लेकिन इस स्त्री को देखी அவள் क्या, என்னை எவ்வளவு நேசித்திருக்கிறாள். इसने मुझसे कितना प्रेम किया। அவர் சொல்லுகிறார், और कहता நான் है, உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், मैं तुमसे कहता இவள் हूँ, செய்த अनेक பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. इसने जो 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 पाप बहुत किए थे அது क्षमा किए அந்த गए। காரியம் தெளிவாக இயேசு சொல்லுகிறாரு, साफ साफ यीशु ने कहा, இவள் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாளே. क्योंकि ये बहुत से प्रेम की। இது அண்டர்லைன் பண்ணி வையுங்கள். ये आप जरा अंडरलाइन இயேசு कीजिए। சொல்லுதாரு, यीशु ने कहा, மிகவும் என்னை அன்பு கூர்ந்தாளே. इसने
बहुत प्रेम किया। அவர் எவ்வளவு நேசித்தாள் அவள். इसने कितना प्रेम किया। அவளை இயேசு சொல்றாரு, यीशु कहता है உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. तेरे पाप क्षमा हो गया। அவர் ஸ்திரியை பார்த்து சொல்றாரு, स्त्रियों को देख के உன் कहता है விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. तेरे विश्वास ने तुझे बचा நீ लिया। சமாதானம் போன்றவர் சொல்லுகிறார். कुशल से चली जा करके कहता है। ஆமென். आमीन। நீ எப்படி அவரை நேசிக்கிறீர்கள்? आप किस तरह उससे प्यार करते हैं? உத்தமர்கள் அவரை நேசிக்கிறார்கள். सच्चे लोग उससे प्रेम रखते हैं। கன்னியர்கள் அவரை நேசிக்கிறார்கள். कुमारियां उससे प्रेम रखते हैं। தேவனுடைய பிள்ளையே, प्रभु के இந்த जनों, பாவியான ஸ்திரீ ये पापिनी स्त्री இயேசுவின் மேல यीशु के ஒரு ऊपर அளவு கடந்த ஒரு அன்பை அவள் வைத்திருந்தாள். वो अनगिनत प्रेम रखी थी। இன்றைக்கு இதனை செய்தி கேட்டும் தேவனுடைய பிள்ளையே, आज ये समाचार सुनने वाले आप நீ எப்படி இயேசுவை நேசித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? आप किस प्रकार यीशु मसीह से प्यार நீங்கள் करते எப்படி हैं? இயேசுவின் மீது அன்பு செலுத்திக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? आप किस प्रकार यीशु मसीह अपने प्यार வேதத்தில் जताते हैं? சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन कहता है உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாய் இருப்பதாக. तुम्हारा प्रेम निष्कलंक रहे। அன்பு மாயமற்றதாய் இருக்க கூடாது. अपना प्रेम निष्कपट नहीं रहना है। இயேசுவின் மேல் ஒரு அன்பு வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் अगर यीशु मसीह के ऊपर प्रेम रखे ஒரு तो கலங்கம் இல்லாத அன்பா இருக்க एक வேண்டும். निष्कलंक प्रेम रहना ஒரு है। கிரியையினால் நிறைந்த அன்பா இருக்க வேண்டும். एक क्रिया से भरकर हुआ प्रेम होना இயேசு चाहिए। பாவின ஸ்திரியை பார்த்து சொன்னாரு, यीशु इस पापिनी स्त्री से நீ कहा இந்த ஸ்திரியானவள் ये स्त्री जो है என்னில் மிகவும் அன்பு கூர்ந்தாள். इसने मुझसे अधिक प्रेम நான் किया। யோசிக்கிறேன், मैं सोचता இந்த हूँ வார்த்தை இயேசு சொன்ன உடனே ये बच्चे शब्द कहते அந்த ஸ்திரீ துள்ளி குதித்து ये இருப்பாள். स्त्री उड़ी मारी ஏன் रहेगी। தெரியுமா? क्यों पता है? ஒருவேளை शायद அந்த ஸ்திரீ பாவியான ஸ்திரியா இருக்கிறதுனால ये स्त्री पापिनी स्त्री होने அவரை के யாரும் कारण நேசிக்காம இருந்திருக்கலாம். कोई भी उससे प्रेम नहीं किया அவ होगा। வசிக்கிற ஊர்ல அவளை ஒருவேளை தள்ளி வைத்து இருக்கலாம். वो जिधर गांव में रहती थी वो गांव वाले उससे दूर அவருடைய रखते होंगे। குடும்பம் கூட அவளை வெறுத்து தள்ளி இருக்கலாம். उसका परिवार भी उससे नफरत किए அவளை होंगे। நேசித்தவர்கள் கூட அவளை சபித்து இருக்கலாம், அவளை துன்பப்படுத்தி இருக்கலாம், அவமானப்படுத்தி இருக்கலாம். जिससे उसने प्रेम किया उन्हें श्राप दिया रहेगा, उसे तकलीफ पहुंचा रहेगा, भगाया ஆனால் रहेगा। இயேசுவையோ लेकिन यीशु मसीह இவள் ने அதிகமாக நேசித்தாள். इसने यीशु मसीह से बहुत प्रेम உலகத்துல किया। கிடைக்காத ஒரு அன்பை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். संसार में न मिलने वाला प्रेम को वो पा ली। சொந்தக்கார கிடைக்காத அன்பை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். रिश्ते नाते से न मिलने वाला प्रेम को वो पा ली। குடும்பத்துல கிடைக்காத அன்பை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். परिवार में न मिलने वाले प्रेम को वो पा ली। ஊர்ல கிடைக்காத அன்பை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். गांव में न मिलने वाले प्रेम को उसने पा ली। எதிர்பார்த்த அன்பை விட ஒரு உண்மையான அன்பை அவர் பெற்றுக்கொண்டார். जो प्रेम की इंतजार थी उससे भी अधिक सच्चाई प्रेम இதையெல்லாம் मिला। எண்ணினவளாக सब याद அவள் करते துள்ளி हुए குதித்து இருப்பாள். अच्छी उड़ी मारी ஆம் होगी। தேவனுடைய பிள்ளையே, हाँ प्रभु के जनों, இயேசுவை நாம் எப்படி நேசிக்கிறோம்? हम यीशु मसीह से किस तरह प्रेम करते இயேசுவின் हैं? மேல எப்படி நம்முடைய அன்பின் தாகம் இருக்கிறது? यीशु मसीह के ऊपर हमारी प्यास कैसी है? இயேசு சொன்னாரு, यीशु ने कहा, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. तेरे विश्वास ने तुझे बचा நீ लिया। சமாதானம் போன்று சொன்னார். कुशल से चली जा பாருங்க, அவள் कर சமாதானம் இல்லாமல் வந்திருக்கிறாள். वो अशांति के बगैर आई ஆனால் थी। இயேசுவை பார்த்த உடனே, जैसे यीशु को இயேசு देखा, மீது அன்பு செலுத்த உடனே जैसे यीशु को पर प्रेम அவளுடைய रखा, வாழ்க்கை மாறினது. उसकी जिंदगी बदल அவள் गई। சமாதானத்தோடு கூட शांति के அவள் साथ புறப்பட்டு சென்றிருப்பாள். वो निकल गई होगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। உத்தமர்கள் நேசிக்கிறார்கள், सच्चे लोग उससे प्रेम रखते हैं। கன்னியர்கள் அவளை நேசிக்கிறார்கள். कुमारियां उससे प्रेम करते हैं। இரண்டாவது ஸ்திரியை பார்க்கலாமா? दूसरा एक स्त्री को हम देखेंगे, மகதலேனா மரியாள். मगदलिनी मरियम। அவளுடைய அன்பை பாருங்கள். उसका प्रेम को देखिए। யோவான் சுவிசேஷம் यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 அதிகாரம் अध्याय 20 அங்க பாடல் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसका 11 वचन में कहा है, மரியாள் கல்லறை அருகே வெளியே நின்று அழுது கொண்டு இருக்கையில் मरियम कब्र के पास बाहर खड़ी होकर रोते அவள் समय குனிந்து கல்லறைக்குள் பார்த்தாள். वो झुककर कब्र की ओर देखी। ஹalleluya. ஹalleluya. அது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பிறகு यीशु मसीह मरकर दफनाने के बाद பாருங்க, ஒரு ஸ்திரீ அந்த மூன்று நாளைக்கு பிறகு அதிகாலையில, तीसरे दिन अधिक सुबह, வாரத்தின் முதல் நாளா காலையில वो हफ्ते सप्ताह की पहला அந்த दिन, வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वचन में कहा है, அதிக இருட்டோடு கூட अधिक अंधकार में மகதலேனா மரியாள் मगदल मरियम கல்லறிடத்துல வந்து कब्र पर आई, கல்லர் அடைத்திருந்த கல்லர் எடுத்து போட்டதை கண்டாள். पत्थर की खबर हटा हुआ देखा। எவ்வளவு அன்பு
பாருங்கள் उसने किस तरह प्रेम இந்த रखा देखो। இந்த மகதலேனா மரியாள் யார்? ये मगदलीन मरियम कौन है? இவள் எப்படிப்பட்டவள்? किस प्रकार की இவளை है? குறித்து வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. इसके बारे में वचन कहा இந்த है। மகதலேனா மரியாளுக்கு ये मगदलीन मरियम को 7 பிசாசு பிடித்திருந்தவள். 7 दुष्टात्मा पकड़ा हुआ था। பாருங்க 7 பிசாசு பிடித்திருந்த மரியாள் இதுவள். 7 दुष्टात्मा पकड़ा हुआ ये मरियम। இயேசு இவளுக்கு விடுதலை கொடுத்தாள். यीशु ने उसको छुटकारा दिया। இயேசு இந்த அருமையான சகோதரிக்கு இந்த மரியாளுக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார். इस मरियम को परमेश्वर ने अद्भुत काम இயேசு किया। மரித்து விட்டார் என்று சொன்ன உடனே, यीशु मर गए जानते, இயேசு அடக்கப்பட்டார் என்று சொன்ன உடனே, यीशु को वहां दफनाने ले அவருடைய गए கல்லறையை चलते। பார்ப்பதற்காக அவர் அதிகாலை இருட்டோடு அவர் எழுந்து கொண்டு வருகிறார். कब्र को देखने के लिए अधिक सुबह सुबह गई। யோசிங்க கொஞ்சம். जरा ஒரு सोचिए, ஸ்திரீ அவள், एक महिला है, வீட்டு ஒரு குடும்பஸ்தனான அவள். वो परिवार में है, சோத்திரம் பாருங்க இருட்டோடு கூட अधिक अधिक அதிகாலையில் रात में அவள் எழுந்து வருகிறாள். वो भोर को उठ के आई, இயேசுவை பார்க்க வருகிறாள். यीशु को देखने आई। அங்க கல்லறையில பார்க்க வந்தா वो जब कब्र पर देखने आई, கல்லறை திறந்து இருக்கிறது. कब्र खुली पड़ी है। தோட்டக்காரனை பார்த்து சொல்றா, वो जो बगीचे वाले को कहता எங்க है, எங்க சுவாமி எங்கே? हमारा जो स्वामी कहाँ அவர் है? காணவில்லையே. वो नहीं जानता அவர் है, கேட்கிறாள். कहाँ गए? இயேசுவின் மீது ஒரு தாகம், यीशु मसीह के ऊपर एक प्रेम, இயேசுவின் மேல ஒரு நேசம் यीशु मसीह के ऊपर रखा அதிக उसने இருட்டோடு எழுந்து கொண்டு வருகிறாள். अधिक भोर को उठ कर गई। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, यहाँ पे कहा है, சிறியனி ஏன் அழுகிறாய்? ये नारी तू क्यों रोती है? ஏன் எதற்காக அவள் அழுகிறாள்? तू क्यों रो रही है? அவள் சொல்லுதா, वो कहती है, என் ஆண்டவர் எடுத்து கொண்டு போய் விட்டார்கள், मेरे प्रभु को उठा ले गए, அவரை வைத்த இடம் எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லுகிறாள். मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ஹalleluya. हालेलुया। இவ்வளவு நேசம் பாருங்க. कितना प्रेम है देखिए। அதிகாலை இருட்டோடு கூட अधिक भोर रात இயேசுவை में தேடு கல்லறையில் பார்க்க அவர் போகிறாள். यीशु को ढूंढने वो खबर में ஒரு जाती है। தனியாக ஸ்திரியா கடந்து போகிறாள். एक अकेली महिला जाती है। யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिए, எனக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, சோதரன மரித்தாலும் பரவாயில்லை, मैं मरेगी तो भी चलेगा। அதிக இருட்டோடு கூட सुबह सुबह என்னுடைய எஜமானை, मेरे मालिक को, என்னுடைய ஆண்டவரை, मेरा प्रभु को, எனக்கு சுகம் கொடுத்தவரை, मुझे चंगा देने वाला எனக்கு को, அற்புதம் செய்தவரை मुझे अद्भुत काम किए அந்த वाला को, கல்லறையிலே போய் அதை நான் பார்ப்பேன். उस कब्र पर जाकर मैं அந்த देखूंगा, கல்லறையிலே போய் அதை விழுந்து விடுவேன். उस कब्र में जाकर मैं घिर நாங்க पड़ूंगी, நான் முத்தம் செய்வேன். वहां जाकर मैं छूऊंगी, நான் அவரை பார்க்க வேண்டும். मुझे उसे देखना அவர் है। காலியோடு இருந்து புறப்பட்டு போகிறார். सुबह सुबह उठकर जाती है। அவளுடைய அன்பு எவ்வளவு வேற பற்றி யோசித்து பார்க்க उसका முடியும். प्रेम कितना बहुमूल्य है, அவள் எவ்வளவு இயேசுவை நேசித்திருக்கிறாள். और कितना यीशु से प्रेम அவள் रखी। ஒரு யோசித்து இருக்கலாம், शायद सोची நான் होगी, எவ்வளவு 7 பிசாசை பிடித்தெல்லாம் காணப்பட்டனே, मुझे 7 दुष्ट आत्मा मेरे पास था, என்னை விசாரிக்க யாரும் வரவில்லையே, मुझे पूछताछ करने तभी कौन नहीं என்னை आया, எனக்காக மன்றாட யாரும் வரவில்லையே, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं இயேசு आया, எனக்கு என்னை அற்புதம் செய்தாரே, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे चंगाई இந்த दी है, பிசாசுவின் விடுதலை கொடுத்தாரே, ये दुष्ट आत्मा से मुझे चंगाई दी அவரை है, சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்களே, उन्हें क्रूस पर मार दिए, அவரை சோதரா ஆர்க்கப்பட்டு விட்டார்களே. उन्हें दफना दिए। கேள்விப்பட்ட உடனே सुनते அதிகாலையில் இவர் தேடி வருகிறார். सुबह सुबह उठकर आती है, அவர் சொல்லுதா, कहता அவர் है, வைத்த இடங்களுக்கு எனக்கு தெரியல. उसे किधर रखा है बताओ। அப்போ பாருங்க, फिर देखिए, இயேசு நிற்கிறதை அவள் கண்டார். यीशु खड़े होते हुए उसने देखी, ஆனாலும் फिर भी அவர் இயேசு என்றவர் அறியவில்லை. वो यीशु करके नहीं जानी। அப்ப இயேசு சொல்லுதார் அவளை பார்த்து, यीशु उसे देखे कहा, ஸ்திரியே, ए महिला, நீ ஏன் அழுகிறாய்? ये नारी तू क्यों रोती है, யாரை தேடுகிறாய் किसको என்றார். ढूंढती है। இந்த சத்தத்தை கேட்டவள் பழக்கப்பட்டவள். ये आवाज सुन के थोड़ा उसे आदत है। பாருங்க, இயேசுவின் சத்தத்தை கேட்டவள் சோதரம் பழக்கப்பட்டவள் அவள். यीशु मसीह की आवाज सुन के वो आदत है। வசனத்தை கேட்டு தேவனுடைய பிள்ளையே, प्रभु के वचन सुनने वाले அதிகாலையில் இருந்து ஜெபிக்கிறீர்களா? सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं क्या? இயேசுவின் சத்தத்தை கேட்டு இருக்கிறீர்களா? यीशु मसीह की आवाज को सुने क्या? இயேசுவின் சத்தத்தை கேட்காமல் எத்தனை இருந்திருக்கிறீர்கள்? यीशु मसीह की आवाज न सुनते कितना दिन थे? இந்த மகதான மரியாளை பாருங்க, मगदे मरियम, இயேசு சொல்லுதாரு, यीशु से कहते நீ हैं, ஏன் அழுகிறாய்? ये नारी तू क्यों रोती है, யாரை தேடுகிறாய் என்றார். किसको ढूंढती है? அப்போ அவளுக்கு ஏதோ தெளிவு வந்து விட்டது. कुछ तो उसको पता இந்த चला है, சத்தம் ஏதோ கேட்கிறேன், எங்க கேட்டு இருக்கிறேனே, ये आवाज मैंने कहीं तो இது सुना, என்னுடைய ஆண்டவர் அல்லவா? वे तो मेरा परमेश्वर இயேசு है। அவளை பார்த்து சொல்றது மரியாளே என்றார். यीशु ने उससे कहा है मरियम, மரியாள் என்று சொன்ன உடனே, मरियम कहते ஆஹா, हैं, இது ஆண்டவர் இவர். ये ही मेरा प्रभु है। அவள் திரும்பி பார்க்கிறாள். वो पलट कर देखी, திரும்பி பார்த்த உடனே देखते ही ரபுனி என்றாள். रबुनी करके ரபுனி पुकारे। என்றால் போதகர் என்ற அர்த்தமா. रबुनी का मतलब है गुरु। எவ்வளவு
எவ்வளவு நேசிக்கிறாள் பாருங்க. कितना प्रेम रखा, அவரை பார்த்த உடனே उसे देखते ही அவளுக்குள்ளாக இருந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. उसके अंदर की आनंद का अनगिनत அவளை है, பிடித்து வைக்க முடியவில்லை. वो अपने आप को थम नहीं पाई, அவளை பார்த்த உடனே देखते ही நேராக ஓடுகிறாள். दौड़ के आई, மகதலேனா மரியா ஓடுதா. दौड़ कर आई, நான் கர்த்தர் கண்டதையும் मैंने परमेश्वर को देखा, அவர் தந்தை சொன்னதையும் जो जो उन्होंने कहा था சீசருக்கு அவர் அறிவித்தார். अपने शिष्यों को उसने எந்த बताया। மனுஷ இயேசுவை நேசிக்கிறார்களோ, जो व्यक्ति यीशु मसीह को जो प्रेम रखते கிரியையை हैं, வெளிப்படுத்துகிறார்களோ, जो कार्य में बताते हैं, அவர்களுக்கு இயேசு வெளிப்படுவார். उनको ही यीशु प्रकट இயேசு होंगे। முதலாவதாக यीशु पहला உயிர்த்தெழுந்த பிறகு जी उठने के बाद மகதலேனா மரியாக்கு அவர் வெளிப்பட்டார். मगदल मरियम को ही पहला இன்றைக்கு दिखाई உங்களுக்கு दे। வெளிப்பட வேண்டுமா? आज आपको प्रकट होना இன்றைக்கு है, உங்களோடு பேச வேண்டுமா? आज परमेश्वर आपसे बातें करना இன்றைக்கு है, உங்களோடு கூட கர்த்தர் உறவாட வேண்டுமா? आज परमेश्वर आपसे मिलना है, உங்களை மகள் என்று கர்த்தர் அழைக்க வேண்டுமா? आपको बेटी बेटा करके पुकारना है। இயேசுவை அதிகாலையிலே தேடுங்கள். यीशु मसीह को सुबह सुबह ढूंढो, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वचन में कहा है, அதிகாலை தேடுவனை கண்டடையும் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. जो कोई सुबह ढूंढता है वो मुझे पाएगा। இயேசுவை தேடுங்கள், यीशु मसीह को ढूंढो, நீங்கள் கண்டடைவீர்கள். आप लोग उसे पाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। மகதலேனா மரியாள் मगदलीन मरियम இயேசுவின் மீது அளவு கடந்த அன்பை வைத்திருந்தார். यीशु मसीह के ऊपर अनगिनत प्रेम रखा था। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது अगला हम देखेंगे 2 கொரிந்தியர் दूसरा कुरिन्थियों 5ஆம் அதிகாரம் अध्याय 5 அது 14 சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उसके 14 वचन में कहा है, கிறிஸ்துவுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது. मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। இது யார் சொல்லுதா? ये कौन कहता है? அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார். प्रेरित पौलुस कहता है। பவுல் என்ன சொல்லுதா? क्या कहता है? கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களை நெருக்குகிறது. मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। கிறிஸ்துவின் அன்புக்கு வல்லமை உண்டு. मसीह का प्रेम में सामर्थ्य है, அந்த வல்லமையானது उस सामर्थ्य में உங்கள் உள்ளங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது. आपका हृदय को दबाती है। நீங்கள் பவுலை போல சொல்ல முடியுமா? आप पौलुस के समान कहते हैं, கிறிஸ்துவின் அன்பை நெருக்கி சொல்ல முடியுமா? मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, பவுல் कहेंगे? சொல்லுதாரு, पौलुस कहता है, கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது. मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। இயேசுவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது ஐயா? यीशु मसीह किस प्रकार के அவருடைய हैं? அன்பு எப்படி காணப்பட்டது? उनका प्रेम कैसे है? நீங்க இத பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவதாக पहला देखे இயேசுவின் அன்பு வந்து यीशु का प्रेम அவர் நம்மை தேடி வந்த அன்பு. हमें ढूंढ कर आया हुआ प्रेम है। நாம் அவரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, हमने उसे नहीं चुना, அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். उन्होंने हमें चुना है। நாம் அவரை அசட்டை பண்ணினோம், हम उससे तुच्छ जाने அவரை गए, நாம் புறக்கணித்தோம், हम उन्हें इनकार किए, அவரை நாம் தள்ளினோம். हमने उसको ढकेल ஆனால் दिया, அவரோ फिर भी நம்மளை उन्होंने புறக்கணிக்காதபடிக்கு, हमें दूर न करते நம்மளை हुए, தள்ளாதபடிக்கு हमें ना ढकेलते அவர் हुए, நம்மீது அவள் பாசம் காட்டினாள். हम पर उसने प्रेम அதை दिखाया, காணாமல் போன ஆட்டை போல जो घूमे हुए भेड़ों के அவர் समान தேடி கண்டுபிடித்து वो ढूंढ कर आकर உங்களையும் என்னையும் அவர் சோதரம் ஆண்டவர் அந்த நாள் நடத்தி கொண்டு வருகிறார். उस मार्ग में परमेश्वर में लेकर आता அவருடைய அன்பு है। எப்படிப்பட்டது? उसका प्रेम कैसा है? நம்மை தேடி வந்த அன்பு. हमें ढूंढ कर आया हुआ அவர் நம்மை प्रेम, தேடி வந்தார் वो हमें ढूंढ कर आया, இல்லையா? है ना? இரண்டாவதா பார்க்கும் பொழுது दूसरा हम देखेंगे அவருடைய அன்பானது उनका प्रेम जो है நமக்காக பரிதபிக்கும் அன்பு. हमारे लिए तड़पता हुआ प्रेम, நமக்காக பரிதபிக்கிற அன்பு அது. हमारे लिए तड़पता हुआ प्रेम। எப்படின்னு சொன்னா कैसे कहेंगे? மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல बिना चरवाहा के भेड़ के அவர் समान ஜனங்களை பார்த்து மனதுருகினார். लोगों को देखकर वो तरस खाया, மனதுருக்கத்தோடு கூட तरस खाकर அவர் அற்புதங்களை அவர் செய்தார். अद्भुत काम उन्होंने किया। ஜனங்களை பார்க்கிறார் அவர். लोगों को देखता है, ஜனங்களை பார்த்த உடனே लोगों को देखते இவங்களுக்கு ही மேய்ப்பன் இல்லையே, इन लोगों को कोई चरवा नहीं இவங்களை है, வழிநடத்த சரியா நபர் இல்லையே इन्हें मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं என்று है, சொல்லி ऐसा कहकर அவர் பரிதபித்தார். उनको ऊपर तरस खाया। அவர் நமக்காக हमारे लिए பரிதபிக்கிற ஒரு அன்பு அவருக்கு காணப்பட்டது. तरस करने वाला प्रेम है। பாருங்க, குஷ்டரோகிகள் அவருக்கு கண்டபோது कोड़ियों जब उन्होंने देखा, இயேசு என்ன செய்தார் தெரியுமா? यीशु ने क्या किया? அவர்களை தொட்டவர் சுகமாக்கினார். उन्हें छूकर चंगाई किया। அது மாத்திரமல்ல, नहीं नहीं, எத்தனை வியாதிஸ்தர்கள், कितने बीमारी है, எத்தனை விதமான நெருக்கப்பட்டவர்கள், कितने तकलीफ उठाने वाले, ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் कष्ट उठाने वाले, இயேசுவை தேடி வந்த பொழுது जब यीशु मसीह को ढूंढ कर அவர்களுக்கு आया, அற்புதம் செய்தார். उनको भी परमेश्वर ने अद्भुत काम மரித்த किया। லாசருவை நினைத்து मरा हुआ लाजर को அவர் याद करके கண்ணீர் சிந்தின அன்பாக காணப்பட்டது. वो आंसू
बहाया वो प्रेम அதைத்தான் था। இயேசு சொன்னாரு, यीशु कहता है யாரை நான் அனுப்புவேன், किसको मैं भेजूं, யார் என் காரியமா போவான், कौन मेरे कार्य के लिए அறுவடை जाएगा। மிகுதியா இருக்கிறதே, कटनी बहुत है, வேலையாட்கள் கொஞ்சமா இருக்கிறாரே, जो 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 काम करने वाले कम हैं। நமக்காக அங்கலாய்த்த அன்பு, हमारे लिए तड़पा हुआ நம்முடைய प्रेम, தேசத்துக்கு அங்கலாய்த்த அன்பு, हमारे देश के लिए तड़पा हुआ யாரையா சுவிசேஷம் அறிவிக்க போவார்கள், कौन सुसमाचार कहने இயேசு जाएंगे। அறிவிக்கப்படாத கிராமங்கள் இருக்கிறதே, और भी जगह है जहाँ यीशु मसीह को नहीं जानते, வசனம் அறிவிக்கப்படாத ஸ்தான இடங்கள் இருக்கிறதே, और भी जगह है जहाँ वचन नहीं सुने யார் गए। என் காரியமாய் போவா, कौन मेरे कार्य के लिए அவருடைய जाएगा। உள்ளம் அங்கலாய்த்து கொண்டு இருக்கிறது. इस प्रकार तड़पता है தம்முடைய ஊழியத்துல अपनी सेवकाई में, தம்மோடு கூட இருக்கும்படியாக अपने संग रहने के लिए சீஷர்களை எழுப்பினார். शिष्यों को उन्होंने उठाए। ஆமென், அல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய அன்பானது उनका प्रेम எப்படி அன்பு சொன்னார், किस प्रकार का प्रेम இது था। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. यहाँ पे कहा गया அவருடைய है, அன்பு நமக்காக பரிதபிக்கிற அன்பு. उसका प्रेम हमारे लिए तड़पने वाला प्रेम மூன்றாவது है। பார்க்கும் பொழுது तीसरा है அவருடைய அன்பு उनका प्रेम தம்மையே வெறுமையாக்கின அன்பு. अपने आप को खाली किया हुआ प्रेम। உங்களை आपको அதாவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह அவர் பரலோகத்திலிருந்து அந்த வாழ்வை துறந்து जो स्वर्ग का द्वार को खोलकर அந்த வாழ்வை அவர் இழந்து उस काम को छोड़कर பூமியில மனுஷனாக அவர் இறங்கி வந்தார். पृथ्वी पे मनुष्य बनकर आया। அது தம்மை வெறுமையாக்கின அன்பு அது. उसने अपने आप को खाली किया। அதாவது எந்த ஒரு மனுஷனும் कोई भी मनुष्य ஒரு லெவலில் இருந்து कुछ लेवल से ஒரு பதவியிலிருந்து உயர்வு கிடைத்த பிறகு एक पदवी में उसको जब ऊंचा स्थान मिलने के அவர்கள் बाद வந்து திரும்பவும் கீழே லெவலுக்கு வர वो மாட்டார்கள். लोग फिर से नीचे का लेवल में नहीं आते। அவர்கள் வந்து மற்ற பதவிகளை தேடி அதான் மேல போய் கொண்டே இருப்பார்கள். वो लोग अपना पदवी के ऊंचे स्थान जाते हैं। உயர்வை தேடிக் கொண்டே இருப்பார்கள். वो लोग ऊंचे ऊंचे जलते ஆனால் हैं। இயேசு அப்படிப்பட்டவர் அல்ல. यीशु मसीह ऐसे அவர் नहीं இந்த थे। பரலோகத்தை துறந்து उस स्वर्ग राज्य को खोलकर அவர் பூமியில் அவர் இறங்கி வந்தார். पृथ्वी पर आए। தம்முடைய மகிமை, अपना महिमा को, தம்முடைய மகத்துவம், अपना महत्व को, வல்லமை, सामर्थ्य को, அதிகாரம், अधिकार को, ஆளுகை राज्य को எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு सब कुछ छोड़कर உங்களுக்காகவும் आपके लिए, எனக்காகவும் हमारे लिए அவர் தம்மையாகவே வெறுமையாக்கி இந்த உலகத்துக்கு அவர் கடந்து வந்தார். अपने आप को खाली कर कर इस दुनिया में वो हमारे लिए அவர் आया। அன்பு எப்படி வெளியேற பெற்றது பாருங்க. उसका प्रेम कितना அது बहुमूल्य அப்போஸ்தலன் है। எழுதுகிறார், प्रेरित पौलुस लिखता है, பிலிப்பியர்ல சொல்லுகிறார், फिलिप्पियों में लिखता அவர் है, தேவனுடைய குமாரனாய் இருந்தும் वो परमेश्वर का पुत्र रहने के தேவனுக்கு बावजूद சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் वो कुछ अपना सब कुछ न जानते தம்மை हुए தாமே வெறுமையாக்கி अपने आप को खाली करके அடிமையின் ரூபம் எடுத்து जो गुलाम का स्वरूप மனுஷ लेकर சாயலானார். मनुष्य का रूप लिया। அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு मनुष्य के रूप में आकर மரண பரியந்தம், मृत्यु அதோ तक, சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் क्रूस के मृत्यु तक கீழ்ப்படிந்தவராகி अपने आप को दीन தம்மை किया। தாமே தாழ்த்தினார். अपने आप को उसने आगे அவருடைய அன்பை பாத்தீங்களா? उसका प्रेम को தம்மையே देखा। வெறுமையாக்கின அன்பு. उसने अपने आप को शून्य किया। அந்த சிலுவையின் மரண பரியந்தமே தாழ்த்தினார். क्रूस के आखिरी छोर तक उसने अपने आप को யாருக்காக? किसके लिए? அவர் நமக்காக हमारे लिए। உங்கள் மீது அன்பு வைத்ததனால आपको पर रखा हुआ प्रेम के அவரது लिए। சிலுவையின் சோத்திரம் ஆமென் அந்த அவமானத்தை எல்லாவற்றையும் சுமப்பதற்காக क्रूस का उस अपमान को सहने के लिए உங்களுக்காக எனக்காக आपके लिए और मेरे அவர் இந்த लिए பூமியில் அவர் இறங்கி इस வந்தார். पृथ्वी पर वो தம்மை आए। தாம் அவர் தாழ்த்தினார். अपने आप को उन्होंने दीन இன்னைக்கு किए। நமக்கு தாழ்மை இருக்கிறதா? आज हमारे अंदर दीनता है। நமக்குள்ளாக ஒரு சோத்திரம் எப்பொழுது பெருமை காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. हमारे अंदर हमेशा एक घमंड रहता है। நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்மளை செவி கொடுக்க முடியவில்லையே. परमेश्वर का वचन को सुनने को नहीं होता அவருடைய है। வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்ப்படி ஒப்பு கொடுக்கிற மாட்கிறோமோ? उसका वचन को हम नहीं सुनते। அந்த ஆண்டவர் இயேசுவை பாருங்க, लेकिन यीशु அவர் मसीह கீழ்ப்படிந்தார் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. उन्होंने अपने आप को आज्ञाकारी बनाया। அவருடைய அன்பு தம்மை தாமே வெறுமையாக்கின அன்பு. उनका प्रेम अपने आप को शून्य எவ்வளவு பெரிய किया। ஆண்டவர். इतना बड़ा ஓ परमेश्वर அந்த மகிமை எல்லாவற்றையும் திறந்து सब महिमा को நமக்கு அந்த छोड़कर பூமியில் அவர் கடந்து इस வந்தார். पृथ्वी पर वो आया। ஆமென். आमेन। அடுத்தபடியாக अगला அவருடைய अன்பானது उनका प्रेम जो है பாடுகளை பொறுமையாக சகித்த அன்பு. तकलीफ को शांति से सहने वाला प्रेम। இயேசுவை போல यीशु के समान நமக்காக யாராவது பாடுபட்டது கிடையாது. हमारे लिए कोई भी दुख नहीं उठाया। நிந்தைகள், निंदा,
निंदा, அவமானங்கள், अपमान கசையடிகள் और मारना, எல்லாவற்றையும் ये सब कुछ உங்களுக்காக எனக்காக பொறுமையோடு அவர் சகித்தார். आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने एकदम शांति அவரை से सहन किया। அடிக்கும் பொழுது उनको जब मारते அவர் समय வாய் கூட திறக்கவில்லை. उन्होंने अपने जुबान तक नहीं அந்த खोले। கெத்செமனே தோட்டத்துல பாருங்க, वो गेत्सेमनी बगीचे में இரத்த வேர்வை சிந்தி लहू का बूंद அவர் गिरकर ஜெபித்தார். वो प्रार्थना किया। போர் வீரர்கள் அவருடைய கன்னத்தில் அடித்தார்கள். वीरों ने उन्हें थप्पड़ मारे। இயேசுவை பாருங்க, यीशु को நமக்காக கடைசி சொட்டு ரத்தம் இருக்கிற வரைக்குமாக अपने शरीर में आखिरी बूंद लहू रहने तक நமக்காக ரத்தம் சிந்தினார். हमारे लिए लहू அவருடைய बहाया। அன்பு சோதரம் ஜீவனையே கொடுத்த அன்பு. उसका प्रेम जो है हमारे लिए जीवन दिया हुआ प्रेम है। அந்த அன்பு கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். जरा उस प्रेम को याद அவருடைய कीजिए। அன்பு இன்றைக்கு உங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது அல்லவா? वो प्रेम आज भी आपको विवश करती है இந்த ना। இந்த அன்பை எண்ணித்தான் பவுல் சொல்லுகிறார், यही प्रेम को याद करके पौलुस கிறிஸ்துவின் कहता அன்பை है, விட்டு எங்களை பிரிப்பவன் யார்? मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? உபத்திரமோ, तकलीफ हो, வியாகுலமோ, बीमारी हो, துன்பமோ, परेशानी हो, பசியோ, भूखे हो, நாசமோசமோ, क्या जो नाशमान हो, பட்டயமோ, तलवार क्यों न இவைகள் हो, எல்லாவற்றிலும் इन सबों में நாம் से நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே जो हमसे प्रेम करते हैं, முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறாய் இருக்கிறோம். हम पूरी तरह से जीवन पाए हैं। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள், आज कितने मसीह लोग கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிறவர்கள், मसीह कहलाने இயேசு वाले, எத்தனை முறை சிலுவையில் அறைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? यीशु मसीह को कितने बार क्रूस पर लटका எத்தனை முறை रहे, பாவங்களை செய்து இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? पाप करते करते यीशु मसीह कितने बार क्रूस அந்த पर இயேசு डाले। நமக்காக எவ்வளவு வெறுமையாக இந்த உலகத்துல வந்து நமக்காக அவர் மரித்தார். इस दुनिया पे आके मरे। அந்த இயேசுவின் அன்பை விட்டு எவ்வளவு நீங்க தூரம் போய் இருக்கிறீர்கள்? उस यीशु मसीह का प्रेम से कितने दूर चले அவரை गए, நேசிக்கமா இருக்கிறீங்களே? उनसे प्रेम नहीं करते। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போஸ்தலர் நீங்க பாருங்கள், प्रेरितों में देखिए, அவர்கள் பணத்திற்காகவோ, उन्होंने पैसों के लिए, அவர்கள் புகழுக்காகவோ नाम के लिए ஊழியம் செய்யவில்லை. उन्होंने सेवकाई नहीं किए। அந்த பேர் புகழ் வேணும். नाम चाहिए। இன்னைக்கு ஊழியம் செய்த சிலரை பாருங்கள், आज सेवा करने वाले, அவர்களுக்கு பேர் வேணும். उनको नाम चाहिए। ஆமா, பேர் போட்டா தான் வருவாங்க. नाम डालेंगे तो आएंगे। அவங்க பேர் பெருசா இருக்கணும், उनका नाम भी बड़े होना அவங்க போட்டோ चाहिए। பெருசா இருக்கணும், उन्होंने उनका फोटो भी बड़ा होना அவங்க அவங்க चाहिए। அவங்க பேனர்ல போட்டோ மேல இருக்கணும். और बैनर में उनका फोटो ऊपर होना அப்படி चाहिए। நினைத்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். ऐसे सोचने वाले भी हैं। அப்போஸ்தலர் பாருங்க, प्रेरित में कहता है, பணத்திற்காக வரல, उन्होंने पैसों के लिए नहीं आए, புகழுக்காக வரல. नाम के लिए नहीं आए। ஏன் வந்தாங்க சொன்னா, क्यों आए? கிறிஸ்துவின் அன்பு அவர்களை நெருக்கி ஏவுவதனால, मसीह का प्रेम उन्हें विवश करने की वजह அந்த से, அந்த அப்படினால उसके कारण பிரச்சனைகள் வந்தாலும், समस्या आया तो பாடுகள் भी, வந்தாலும், परेशान आया तो भी, நெருக்கங்கள் வந்தாலும், तकलीफें आया तो அவர்கள் भी, அந்த அதிலே उनमें அந்த से கிறிஸ்துவின் அன்பிலே मसीह का प्रेम அதை में பிரிக்காதபடிக்கு उनसे न जुदा होते உறுதியாக थे। वो நின்றார்கள். लोग स्थिरता से खड़े थे। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க எப்படி இருக்கிறீர்கள்? आप कैसे हैं? நீங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பில் நிலைத்து நிற்கிறீங்களா? मसीह का प्रेम में आप खड़े हो? ஏதோ ஒரு காரியம் எனக்கு நடக்கவில்லை, कुछ तो कार्य मुझे नहीं எது हुआ, எதிர்பார்த்து எனக்கு ஆண்டவர் செய்யவில்லை, जो मैंने सोचा वो काम नहीं இயேசு मिला। விட்டு தூரம் போய் இருக்கிறீர்களா? यीशु मसीह से दूर இந்த गए। உலக பொருளுக்காக இயேசுவின் அன்பை விட்டு நீங்க விலகி இருக்கிறீர்களா? संसार के चीजों के लिए यीशु मसीह से दूर है। வேதம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वचन कहता है, கன்னியர்கள் அவரை நேசித்தார்கள், कुमारियां ने उससे प्रेम रखे, உத்தமர்கள் அவரை நேசிக்கிறார்கள். सच्चे लोग ने उनसे प्रेम நீங்க எப்படி रखे। நேசிக்கிறீர்கள்? आप किसका प्रेम किस प्रकार है? உங்க அன்பு எப்படி இன்னைக்கு வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது? आपका प्रेम किस प्रकार प्रकट होती है? பவுல பாருங்க, पौलुस को அந்த देखिए, எருசலேமில் வந்து சொல்லுகிறார், यरूशलेम में आके நான் कहता है, கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்திற்காக मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के लिए, கட்டப்படுவதற்கு மாத்திரமல்ல, मैं केवल बांधे जाने के लिए नहीं, மரிப்பதற்கும் நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். वरना मरने के लिए भी मैं तैयार இதுதாங்க हूँ। அன்பு. यही तो प्रेम है। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है, இயேசுவுக்காக மரிப்பதற்கும் நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार நீங்க हूँ। ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா? क्या आप तैयार हो? பவுலை போல உங்களால சொல்ல முடியுமா? पौलुस के समान आप कह पाओगे? இப்படி இயேசு உங்களால் நேசிக்க முடியுமா? इस प्रकार यीशु से प्रेम करोगे? பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता நான் है, கிறிஸ்துவுக்காக ஆயத்தமா இருக்கிறேன், நான் மதிப்பதற்கு. मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए मैं तैयार हूँ। ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் हजारों सेवक இயேசுவுக்காக மரிப்பதற்கு ஆயத்தமானார்கள். यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयारी हुए। ஹalleluya. हालेलुया। அவருடைய அன்புக்கு இணையான அன்புகள் இல்லை. उसके प्रेम में कोई और जुदा नहीं हो அவருடைய सकता। அன்புக்கு இணையான வேற அன்பு இருக்கவே முடியாது, இருக்கவும் கூடாது. उसके प्रेम के समान कोई होना भी नहीं चाहिए, ना होगा। அவளும் நம்மை நேசித்திருக்கிறார்கள். ना उसने हमसे प्रेम किया। உத்தம
உத்தமர்களும் நேசிக்கிறவர்கள் மாத்திரமல்ல, केवल सच्चे लोग ने प्रेम किया, கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்க சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. कुंवारियां भी उनसे प्रेम கன்னியர்கள் रखें। என்றால் யாரையா? कुंवारियां मतलब कौन? உடனே திருமணம் முடியாது சொல்ல முடியும், அப்படிதானா? तुरंत हम लोग ये सोचेंगे जिसकी शादी नहीं हुई, அப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம். ऐसा हम लोग सोचेंगे। ஆனால் அவர்கள் கரை திரையற்றவர்கள். उसका मतलब ये है कि वो लोग निष्कलंक அவர்கள் है। லீலி புஷ்பத்தை போல வெண்மையானவர்கள். वो लोग जो लीली फूल के समान, वो लोग एकदम शुद्ध है। கர்த்தரை முழு இதயத்தோடு நேசிக்கிறவர்கள். परमेश्वर से वे लोग पूरे मन से प्रेम रखते हैं। ஆண்டவர் கன்னியர்களால நேசிக்கப்படுகிறவர். परमेश्वर कुंवारियों से प्रेम रखते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய சபையானது परमेश्वर का कलीसिया கன்னியர்களால நிறைந்த சிறுகுட்டமாய் நிரம்பி இருக்கிறது. कुंवारियों से भरा हुआ ये छोटा सा झुंड है। மணவாளனாகிய हमारा दूल्हा கிறிஸ்து இயேசு यीशु मसीह எக்கால சத்தத்தோடு கூட अपना जो तुरही की आवाज के வெளிப்படும் பொழுது साथ जब वो प्रकट होगा, அந்த கன்னியர்கள் वो कुंवारियां இயேசுவின் மணவாளையாக சபையாக வெளிப்படுவார்கள். यीशु मसीह का जो कलीसिया दुल्हन जैसा रहेंगे। அங்கே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இருக்கிறது. वहाँ पवित्र आत्मा का अभिषेक है। அந்த அபிஷேகம் ஊற்றப்படும் பொழுது जब वो अभिषेक उंडेला जाएगा, அந்த மகிமையில் அடைந்து वो महिमा के ऊपर महिमा அந்த पाकर கர்த்தருடைய மணவாட்டின் ஸ்தானத்தில் உயர்த்தப்படுவோம். हम उस कलीसिया की दुल्हन के स्थान में पहुंच जाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவை நேசிக்கிறீர்களா? यीशु मसीह से प्रेम அந்த करते हैं क्या? விரும்புகிறார். क्या प्रभु वही चाहता है? கன்னியர்கள் அவரை நேசித்தார்கள். कुंवारियां ने उनसे प्रेम रखे, உத்தமர்கள் அவரை நேசித்தார்கள். सच्चे लोग उनसे प्रेम रखे, உண்மையாகவே सच्चाई से। நீங்க கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் एक मिनट உங்களை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்கள். अपने आप को जांच कर நான் देखिए, இயேசுவை உண்மையாக நேசிக்கிறேனா? मैं सच्चाई से यीशु मसीह से मैं प्रेम நான் रखता हूं இயேசுவை क्या? உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேனா? मैं सच्चाई से यीशु मसीह से प्रेम இயேசு रखा हूं அன்புல क्या? செலுத்தி இருக்கிறேனா? यीशु मसीह का प्रेम में रखा हूं கொஞ்சம் क्या? யோசித்து பார்க்க जरा வேண்டும். सोच कर देखिए। அதுதான் பவுல் சொல்லுகிறார். इसलिए पौलुस कहता है, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எங்களை யாரும் பிரிக்க முடியாது. मसीह के प्रेम से मैं कोई अलग नहीं कर सकता। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर अच्छा है। வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य அந்த 19ஆம் சோத்திராய சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. 19 अध्याय में कहा அங்க है, என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது சொன்னார்? वहाँ पे क्या कहा நாம் है? சந்தோஷத்தப்பட்டு களி கூர்ந்து हम आनंद होकर அவருக்கு துதி செய்ய கழுத்த கடவோம். हम वहाँ पे आनंद मनाएंगे। ஆட்டுக்குட்டியானவருடையதான சோத்திர கல்யாணம் வந்தது. मेमने की ब्याह आई थी, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டாள். जो उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार இந்த कर வசனம் அங்க लिया। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ये वचन कहा गया है। ஆம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, हाँ प्रभु के जनों, நாம் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு हम இருக்கிறோம். आखिरी दिन में आए हैं। இயேசுவை நேசிப்போம். यीशु मसीह से அந்த प्रेम மணவாளனா करें। இயேசு கிறிஸ்து उस दुल्हा यीशु அவர் मसीह சீக்கிரம் வர போகிறார். जल्दी से आने वाला அவர் है। நல்லவர், वो अच्छा है, அவர் பெரியவர், वो महान है, அவர் நம்ம நேசிக்கிறவர் தேவன். वो हमसे प्रेम करने वाला ஜீசஸ். परमेश्वर। ஆமென். ஹalleluya. உம்மை அல்லாமல் வேறே விருப்பம் உள்ளத்தில் இல்லையே. உம்மை அல்லாமல் வேறே விருப்பம் உள்ளத்தில் இல்லையே. நிம்மதியே நிரந்தரமே, என் நிம்மதியே நிரந்தரமே, என் நினைவெல்லாம் ஆழ்பவரே, என் நினைவெல்லாம் ஆழ்பவரே. நேசிக்கிறேன் உம்மை தானே ஐயா, உம்மை தானே இசையா. நேசிக்கிறேன் உம்மை தானே ஐயா, உம்மை தானே இசையா. ஐயா உம் தாகம் என்னது ஏக்கம், அடிமை நான் கதறுகிறேன். ஐயா உம் தாகம் எனது ஏக்கம், அடிமை நான் கதறுகிறேன்.
கொடுக்கிறோமா? आज हम सौंपेंगे, நாம் சொல்லுவோமா? क्या हम कहेंगे உம்மையே நான் நேசிக்கிறோம், मैं केवल आपसे प्रेम रखता हूँ, உம்மையே நாங்கள் நேசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. हम केवल आपसे प्रेम रखते हैं। உங்களுக்காக எங்களை எவ்வளவோ நேசித்திருக்கிறீயா, आपने हमें कितना प्रेम रखा எங்கள் है, எவ்வளவு அன்பு செலுத்தியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. आपने हम पर कितना प्रेम रखे நாம் हैं। உண்மையாக सच्चाई से இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து अपने हृदय के गहराई ஆண்டவரை से நேசிப்போம், हम प्रभु से प्रेम அவரை रखें, துதிப்போம், उसकी हम स्तुति करें, அவர் நோக்கி நம்ம பார்ப்போம். उसकी और हम देखें। நிச்சயமாகவே निश्चय அவர் உங்கள் மீது ஒரு அன்பு செலுத்தி இருக்கிறார். वो आपको ऊपर भी प्रेम உங்களை करेगा, அவர் கைவிட वो மாட்டார். आपका हाथ नहीं ஆண்டவர் छोड़ेगा, உங்களை உயர்த்துவார், परमेश्वर आपको ऊंचा உங்களை அவர் करेगा, நடத்துவார். वो आपको चलाएगा। கலக்கத்தோடு இருக்கிறீங்களா? चिंता के साथ है क्या? கண்ணீரோடு கூட இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தீர்களா? आंसू के साथ ये वचन सुन रहे हैं क्या? நிச்சயமாகவே निश्चय உங்க கண்ணீருக்கு ஒரு பதில் உண்டு, उस आंसू का उत्तर உங்க है, துக்கத்துக்கு ஒரு பதில் உண்டு, आपका दुख का उत्तर உங்க है, வேதனைக்கு ஒரு இன்றைக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. आपका दर्द का आज अंत है। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आप सबको आशीष நாம் करें। ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना எங்களை करें। அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். हमसे अधिक प्रेम करने वाले पिता आपको இந்த धन्यवाद। அருமையான வேளைக்காக உமக்கு நன்றி. इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। கண்ணீர்களுமே நேசிக்கிறார்கள் அப்பா. तुम्हारी यहाँ तुझसे प्रेम रखती है, ஆண்டவரே உத்தமனை நேசித்தார்கள் ஆண்டவரே. सच्चे लोग आपसे प्रेम रखते நாங்கள் हैं, உம்மை நேசிக்கத்தக்கதாக, हम भी आपसे प्रेम रखते ஆண்டவர் हैं, உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கத்தக்கதாக हम आपकी ओर देखने, ஒரு பிள்ளைகளுக்கு நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். अपने बच्चों को आप अनुग्रह कीजिए। உபத்திரமோ, तकलीफ हो, பாடுகளோ, और परेशानी हो, நெருக்கங்களோ, और उन्हें दबाव हो, அவமானங்களோ, अपमान हो, நிந்தைகளோ निंदा हो, உம்முடைய அன்பை விட்டு பிள்ளைகளை விட்டு பிரிக்காதபடிக்கு आपका प्रेम से वो लोग अलग ना होते हुए அன்பினால நிரம்பி பிள்ளைகள் ஜீவிக்கத்தக்கதாக प्रेम से भरकर जीने वाले, அன்பானவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். ऐसे प्रेमों को परमेश्वर छुटकारा ஒவ்வொரு दीजिए। ஆசீர்வதிங்கப்பா. हर एक को आशीष எந்தெந்த कीजिए। காரியங்களுக்காக இன்னைக்கு ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கிறாங்களோ जिन जिन बातों के लिए वो लोग प्रार्थना कर அந்த रहे हैं, காரியத்தை அற்புதம் நடப்பதாக. उन कार्यों में अद्भुत काम हो। வியாதியோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வியாதி சுகத்தை கொடுப்பீராக. जो कोई रोगी है उन्हें चंगाई दीजिए। வேதனைக்கு சுகமாயிரு என்று சிறிய பார்த்து சொன்னீரையா. स्त्री से कहा कि तेरे दुख से तू दूर हो எல்லா जा, வேதனை மாறட்டும். सारा दुख दूर हो। சத்துரு கொண்டு வருகிற வேதனைகள், अब शत्रु लेकर आने वाले दुख பிசாசு हो, கொண்டு வருகிற வேதனைகள், शत्रु लेके आने वाले दर्द மனுஷன் हो, கொண்டு வருகிற வேதனைகள் मनुष्य लाने वाले दर्द को இயேசுவின் நாமத்தில் மாறும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर बदलते எங்க हैं। தேசத்தில் எழுப்புதல் வரட்டும், अपने देश में बेदारी आए, மகாராஷ்டிர எழுப்புதல் வரட்டும், महाराष्ट्र में बेदारी தானா आए, மாவட்ட எழுப்புதல் வரட்டும் ஐயா. थाना राज्य में बेदारी சபைகள் आए, சீக்கிரம் திறக்கப்படட்டும். कलीसिया जल्दी से खुल நாங்கள் जाए। இணைந்துமே ஆராதிக்க கிருபைகளை கொடுங்க. मिलके आराधना करने के लिए हमें मदद अंधकार कीजिए। வல்லமைகள், अंधकार की सामर्थ्य, சாத்தானின் கோட்டைகள் शैतान की गढ़ இந்த மாவட்டத்தை விட்டு हमारे राज्य से விலகி போகும்படியாக, दूर निकल தேசத்தை जाए, விட்டு விலகி போகும்படியாக, देश से ही दूर हो பொல்லாத जाए। ஆவிகளை, बुराई आत्मा, ஜனங்களை கடுக்கிற ஆவிகளை, लोगों को बिगाड़ने वाली நரகத்தை आत्मा, கொண்டு போகிற ஆவிகளை नरक में ले जाने वाली आत्मा, நிர்மலமாக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். हम उससे डांट के प्रार्थना தேவ करते हैं। பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். परमेश्वर का रक्षा रहे। தேவனுடைய பிள்ளைகள் செய்கிற வேலைகளை ஆசீர்வதிங்க. प्रभु के जन काम करने वाले कामों को அவங்க आशीष, வியாபாரத்தை ஆசீர்வதிங்க. उनके धंधा को आशीष कीजिए। வியாபாரம் இருக்கிறதான எல்லா நெருக்கங்கள் மாறும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். जो उनकी बिजनेस में चले वाली सारी समस्या को दूर பொறாம हो, எரிச்செல்லாம் மாறட்டும். जलन और विरोध जो परमेश्वर दूर உடைய हो, பிள்ளைகள் யுத்தம் செய்வீராக. अपने बच्चों के लिए आप लड़ाई சிறுபிள் कीजिए, ஆசீர்வதிங்க. बच्चों को आशीष कीजिए, வாலிபர்கள் ஆசீர்வதிங்க. जवानों को आशीष कीजिए, பெரியவர்கள் ஆசீர்வதிங்க. बुजुर्गों को आशीष कीजिए। தேவநாமம் மகிமைப்படட்டும். केवल प्रभु की नाम महिमा हो। உங்களை தாழ்த்துகிறோம். अपने आप को हम झुकाते हैं, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए। இயேசு மூலம் ஜெபங்களின் ஜீவன் அல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, சகல உபகாரங்களை மறவாதே. आमेन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, ये मेरे मन उसको पवित्र नाम को धन्य कर, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसने क्यों सारे उपकार को कभी ना बोला। आमेन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவுடைய கிருபையும், हमारे परमेश्वर की जो अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், पिता का प्यार, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा की सहभागिता நம்மோடு கூட, हमारे साथ, உலகத்துல பரிசுத்தவான்களோடு கூட संसार के सारे पवित्र लोग के साथ என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. हमेशा रहे। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। God bless you. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம்.